Good morning, honorable members. I welcome you all again to the fourth sitting of the 11th session of the 7th Arunachal Pradesh Legislative Assembly. Now we'll take up question hours. Start question 26, Sri Wanglin Longdong. Thank you, Speaker, sir. Just the other day, to be precise, on the March 8, International Women's Day was celebrated. So how best it would be for me to ask the first question in today's session on that topic. The question is that why is the police station, women police station at Khunsa, Tirap district, being delayed for so long a time? The police station, the women police station at Khunsa, Tirap district was approved in the year 2014. A letter to the allotment for the land had gone on 15 December 2014 to the government. A land measuring 14,674 square meters. Herein in the answer it says that due to lack of infrastructure. The lack of infrastructure will be due to the non-sanction of the amount from the government. So how long will it take? It has already taken 9 years for the women police station in Tirap district to be sanctioned and functioning. Thank you. Honorable Speaker, sir, the answers to the star question number 26 raised by Honorable Member Wanglin Luangdong ji, A, B, C, D is on the table of the House. जो Honorable Member ने कहा the importance on women, मैं आपको Honorable DCM sir के जो budget speech का obstruction को बताता हूँ कि how this government, Pema Khandu government is taking importance of giving empowerment to the women. To further strengthen the police presence in the state aimed at keeping the peace and tackling crimes, especially against women, I am pleased to announce a sum of rupees 30 crores for 10 new notified police stations. So this is how the government is taking importance in protecting and empowering the women in our state. As per your supplementary question, we have altogether 100 police stations notified across Arunachal Pradesh, out of which 21 especially for women police station. Out of 21 police stations, till today, we could make it functional in 7 police stations. So, Khunsa is one of the notified police stations. But as you have already said, due to non-availability of infrastructure, now the top criteria, we are going to, the Honorable DCM Sahib have already announced for to construct 10 new notified police stations. We have some laid down criteria. The top criteria is the availability of land, जिसका पास प्री जमीन है पुलिस स्टेशन बैठाने के लिए. काफ़ी ज़मीन ज़रूरी होता है, पार्किंग एरिया ज़रूरी होता है. जिस जगह से हम लोग लैंड अवेलेबिलिटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर हम लोग मिलता है तो वी विल टेक अप अकॉर्डिंगली. तो इसलिए अभी टिल नाउ आउट ऑफ 142 110 पुलिस स्टेशन इज ऑलरेडी इन फंक्शनल. अभी तक हम लोग नोटिफाइड वाला में से 32 पुलिस स्टेशन को अभी फंक्शनल कराना है. तो इट विल बी वी आर मेकिंग इट फंक्शनल फेज वाइज, नीड बेस, रिक्वायरमेंट बेस में हम लोग कर रहा है. एंड वी विल सी दैट कि आपका जो कौन सा वाला पुलिस स्टेशन जो है
इस पुलिस स्टेशन को फंक्शनल कराने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, लैंड अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो सब होने से वी विल टेक इट अप इन द कमिंग डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ईयर. Question. You have a supplementary? Yes, one more. One more. Yes. I think the last supplementary. Thank you so much. As stated by the Honorable Minister, Home, in regard to the availability of land, the land availability and the subsequent, letter was sent by the Deputy Commissioner in the year 2014. And that land which is available for the police station, women police station at Khonsa, is government land. So the question of cost does not matter. It will be provided free of cost. And it measures almost 15,000 square meters. I think that is sufficient for a women police station. I would like, through you speakers, sir, if the Honorable Minister can give an assurance, because Tirap district is a very sensitive district under the purview of the Armed Forces Special Power Act, and it's still a disturbed area. And a lot of drug addiction is also there. And many of the women too are involved in this. So without the basic requirement of a women police station being there, sometimes there is embarrassing situations. So I think whether the minister concerned will give assurances to this August House, not to me, that he will take up this women police station at Khonsa within this year. And also by request to Honorable Deputy Chief Minister, Finance Minister, to sanction the required necessary funds. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर सर. दी ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि ज़मीन फ्री में मिला, ज़मीन दे दिया, फॉरवर्ड कर दिया, और इफ इट इज़ ट्रू देन वी विल टेक इट अप. Start question 6. Sri Ninong Iring. Thank you, Honorable Speaker, sir. I have seen the reply of Honorable Home Minister. But I would also like the Honorable Chief Minister to give a comment on the question that I have put up, because of course it is an international issue, so usually it has to go to the Parliament or it has to come from the central government. But as we have just seen, sir, recently also the Chinese are always, their demands on Arunachal Pradesh, their issues on the Galwan or in Tawang just recently which happened. So if we are to have this kind of skirmishes always, it is a time that the central government also should, reply to the question. The reply is asked that they have asked the furnished to details under number 12115 section B. Okay, you have written that letter, but why is the government of India not taking it seriously and replying to those questions? Because as you have known, sir, why are the foreign countries getting involved with us? Just recently, you will see in the media, you will see in the news, in the newspapers, it is said that the United States Senator says that Arunachal is a part of India and they are going to discuss it in the United States. Or the BBC says that Tawang is an integral part of China. Come on. At least these issues should be discussed and they should take it seriously. We are Arunachalis, we are Indians, we are part of India. And if foreign countries are to speak for us, why can't the government of India reply to my questions? Thank you, sir. Are this in the competency of the state government to reply? If Honorable Chief Minister wants. Or no, you're asking the Chief Minister, right? Yeah, I request the Honorable Chief Minister to reply to my question, sir. Honorable Speaker, sir. इनफैक्ट ये जो मैटर जो है वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मैटर है. इट परटेन्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो वैसे बीइंग एन अरुणाचल वी ऑल नो कि अरुणाचल प्रदेश का हम लोगों का जो यहाँ का जो कंडीशन है और जो बाहर जो हम लोगों का जो पड़ोसी मुल्क है वो लोग किस ढंग से अरुणाचल को जो क्लेम करके बैठा हुआ है वो तो एक इंटरनेशनल एक इशू है. बट ऐसे में अरुणाचल हम लोगों को हकीकत पता है क्योंकि हम लोग यहाँ में बसे हुए हैं. और जब से ये जो चाइनीज़ क्लेम अरुणाचल में है तब से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस
अरुणाचल का यहाँ का जनता और बॉर्डर को और भी सुरक्षित करने के लिए आर्मी का प्रेजेंस भी काफ़ी है और आर्म जो पुलिस फोर्सेस जो होते हैं उसका भी प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी है और वी शेयर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इनफैक्ट आई कॉल इट टिबेट ओनली हम लोग एक्चुअली वी बॉर्डर विथ टिबेट ओनली डायरेक्टली वी बॉर्डर विथ टिबेट सो टिबेट के साथ में करीबन 1200 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। तो इसमें अभी सदियों का चाइनीज़ का कहना है कि अरुणाचल पूरा उसका ही है, चाइना का बिलोंग करता है, लेकिन वी एस इन अरुणाचली वी नो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अभी नरेंद्र मोदी साहब का लीडरशिप में तो नाउ हम लोग का वॉइस जो है अभी वोकल होना शुरू हुआ है इंटरनेशनल फोरम में भी। पहले एक ज़माना था कि चाइनीज़ लोग जो भी एजेंडा बनाता था भारत सरकार झुक जाता था, मगर अभी का टाइम में ये सरकार जो है झुकने वाला नहीं है। हम लोग ने बहुत सारा इंसिडेंट्स हम लोग ने देखा गलवान में जिस प्रकार से हमारा जो भारतीय सेना ने जो हैंडल किया, और अभी रिसेंटली जो हुआ था पिछले साल वो जो तवांग सेक्टर में यांगसे, वो मेरा ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं हर एक साल वहाँ पे टूरिंग में जाता हूँ। यांगसे इज लोकेटेड, यांगसे द सेक्टर इज लोकेटेड एट अराउंड 16,000 फीट। तो पहले तो वहाँ पे सड़कें भी नहीं था, अभी 2 साल हो गया अप्रोक्सीमेटली कि 2 अप्रोच से अभी वहाँ पे रोड भी पहुँच गया है। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट अभी काफ़ी पुश कर रहा है हमारा, चाहे कामिंग सेक्टर हो, चाहे अपना सुबनसिरी सेक्टर हो, या चाहे अपना ईस्टर्न सेक्टर में जो अपना अंजो किबितु और ये अपना दिबांग सेक्टर में। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का कारण से हमारा डिफेंस लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम पे पड़ रहा था, अभी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वहाँ पे बढ़ गया है। और साथ साथ ये भी आप लोग नोटिस कीजिए कि पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या इवन जितने भी जो सीनियर मिनिस्टर्स हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर क्यों ना हो, जब भी कोई अरुणाचल आता था तो हमेशा उसको एक सिंपल एक प्रोटोकॉल के तौर पे चाइनीज़ हमेशा ऑब्जेक्शन करता था। मगर अभी पिछले साल से आप देखिए ऑनरेबल पीएम साहब आया होलोंगी में, हमारे यहाँ एयरपोर्ट उद्घाटन करके गया, कुछ रिएक्शन नहीं है। रिसेंटली अपना ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम आके गया, कुछ रिएक्शन नहीं है। तो धीरे धीरे डिप्लोमेसी में भी हम लोगों का अभी इसका मतलब ये प्रूव कर रहा है कि अपना प्रेजेंस जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार इसमें डिस्कशन करके अभी ये काफ़ी अच्छा ये अचीवमेंट हो रहा है। एंड डेफिनेटली वो चाइनीज़ लोग जो हमेशा जो क्लेम करके जो बैठा है, उनका भी अपना वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स होगा, मे भी उस कंट्री में कुछ क्राइसिस होता है तो डेफिनेटली वो टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए फिर वो लोग इस तरह का एक स्टेटमेंट दे देता है वो लोग। मगर अभी का जो टाइम में माननीय प्रधानमंत्री वो काफ़ी सक्षम है और इंटरनेशनल अफेयर्स में अभी पहले जो पुराना भारत था वो अभी वो पुराना भारत नहीं रहा, अभी एक नया भारत का रूप में अभी उभर के आ रहा है। थैंक यू जी। आदरणीय मुख्यमंत्री का जवाब से तो संतुष्ट है हम, और उनके साथ ही हम, उनका पूरा समर्थन है हमारा। लेकिन सर एक चीज़ हम केंद्र सरकार को भी हम एक विथ कन्विक्शन हमको बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि हम ऐसे कि नहीं, हम अरुणाचल इज़ अ डिस्प्यूटेड लैंड एज क्लेम बाई चाइना कैनॉट बी एक्सेप्टेड। सर मेरा ये कहना है कि हमारा जो यहाँ के जो विकास के कार्यक्रम में पूरा बाधा होता है। मेरा ये भी एक प्रश्न है कि सर जैसे असम है, मेघालय है, सिक्किम है, वो पूरा जो यहाँ के जो बाहर के जो फाइनेंस है उनको वो एडवांटेज लेते हैं, जैसे जायका है, जैसे एशियन बैंक है, हमारा वर्ल्ड बैंक है, हमारा इतना सारे प्रोग्राम्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, योजनाएं थे, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। क्यों हमारा इधर अरुणाचल में इसको हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? इसके लिए एक बहुत हमको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, यहाँ से एक मैसेज भी जाना पड़ेगा सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट श्री तारिन दत्त। Thank you, sir. I am Tarin Dakpe, MLA 25 Braga Assembly Constituency of Kamla District. My question is number 51, whether government is planning to establish AIMS in Arunachal Pradesh, if so, when it will be established. But I got the reply from Honorable Minister,
family and welfare, health and family welfare. But my point is that, supplementary point, if it is going to be upgraded, the present health institution in Pasigat, there should be sufficient land because it is a big institution and all over Arunachal Pradesh patient log aayenge, garib log aayenge. For that, whether government is planning to keep provision for the patients, sufficient area, sufficient infrastructure, ये आपका proposal में है नहीं कि यही पूछ रहा हूँ. Thank you very much. मंत्री जी. है कि नहीं? Honorable Speaker, sir, yes, we have got sufficient land there at Pasigat District Hospital, General Hospital, and we are also proposing establishing a 50-bedded critical care unit here at Pasigat to meet up that requirement. And beside that, also, we have already plotted a tender for 300 beds there. So we are fully prepared to claim aims like medical at Pasigat. Thank you, sir. Start question 42, Sri Navam Tuki. Honorable Speaker, sir, is there question regarding 42? The Honorable Minister has replied, but I want to ask particular supplementary one question only, that there are two projects under my constituency, Sagali. One has been constructed, completed, but not handed over to the department, and it is in a deteriorating condition. And another one project at New Sagali, tourist hut, it is incomplete physically and financially. And when this project will be completed? Honorable Minister is absent. Honorable Chief Minister may reply. ऑनरेबल स्पीकर सर, यहाँ पे डिटेल वैसे जितने भी जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए हैं यहाँ पे लिस्ट यहाँ इनक्लोज है. तो माननीय मेंबर श्री नवम तुकी साहब ने जो सप्लीमेंट्री जो पूछा है कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे शायद काम कंप्लीट नहीं हुआ शायद. हाँ, तो इसमें ऑलरेडी हम लोग ने अराउंड 3 इयर्स बैक जितनी भी जो डीलिंग स्कीम था वहाँ पे हम लोग ने राज्य सरकार से ऑलरेडी फंड प्लेस कर दिया है. तो मैं डिपार्टमेंट को निर्देश देंगे कि जितने भी जो डीलिंग स्कीम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जिसमें से सागाली का भी जो 2 प्रोजेक्ट है वो भी इंक्लूडेड होंगे. Start question 7, Sri Ninong Iring. Honorable Speaker, sir, as the reply has been given in details, it furnished in details, and thank you, sir. Okay. Again, question 43, Sri Navam Tuki. Is there question 43? Honorable Minister in charge power has given the reply in answer A, B, C, D. I appreciate the answer, but with this meager amount that you have assured, that will not able to complete entire the large geographical area in my constituency, because you have given token amount, you have assured to do it, but this token amount will be not be able to complete. Can you assure me to do augmentations, upgradations, and maintenance of entire electrical system in my constituency? Mantri ji.
अध्यक्ष जी, शायद मेरा सप्लीमेंट्री रिप्लाई से ऑनरेबल मेंबर खुशी हो जाएंगे अभी थोड़ा देर में। ऑलरेडी खुश है लेकिन बोला देयर इज अ बट। तो मेरा रिप्लाई उसी तरह से होगा। मैं मिसलीड नहीं करूंगा हाउस को, मैं जो सही है वही बताऊंगा। हाँ, जो आपके लिए भी जो सही है वही बताऊंगा। क्या जो ये जो सगाली का जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सप्लाई है ये यूपीआ से जाता है 60 किलोमीटर्स ऑफ 11 केवी लाइन। 11 केवी लाइन 60 किलोमीटर जा नहीं सकता है, वो पावर वोल्टेज डाउन हो जाता है बीच बीच में, तो इसीलिए वो पावर ट्रिप हो जाता है। उसका बाद मैन मेड भी होता है, कभी कभी घास गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, इसी तरह फिर टेक्निकल फॉल्ट भी होता है, जैसे इंसुलेटर पंक्चर हो जाता है, क्या हो जाता है, इस तरह का है। इसीलिए आपका वहाँ में कांस्टेंट पावर सप्लाई हो नहीं सकता है। यह प्रॉब्लम बहुत दिनों से सालों से आ रहा है। अभी सरकार ने एक नया आयोजन लिया है कि वो जो कॉम्प्रहेंसिव में आपका सगाली में जो काम लिया है मैं उसको बता देता हूँ आपका। और ये जब हो जाएगा आपका पावर सप्लाई पूरा रेगुलर हो जाएगा। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ 132/33 केवी 15 MVA पावर सबस्टेशन एट सगाली। ये काम चल रहा है, वर्क गोइंग ऑन, फास्ट गोइंग ऑन। कंस्ट्रक्शन ऑफ 33/11 5 MVA पावर सबस्टेशन एट लपोरिया, ये भी पावर ग्रिड का काम चल रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ 33 kV लाइन फ्रॉम सगाली टू लेपोरियांग अराउंड 16 किलोमीटर। फिर डेडिकेटेड 3.15 MVA पावर ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल्ड एट 33/11 kV सबस्टेशन यूपीआर फॉर सगाली, सगाली के लिए है। एंड एन रूट विलेजेस विच एक्सटेंडेड टू पाके कसंग तक चला जाएगा। Since the comprehensive scheme has been undertaken by PGCIL to construct 132/11 kV 15 MVA power substation at Sagali and construction of 33/11 kV 5 MVA power substation at Leporiang under the Sagali constituency are progressing with full swing. Completion of 33/11 substation including procurement of 33/11 kV 3.15 MVA transformer at Sakali has been completed physically. The provision for transmission and distribution system in Sakali constituency has also been kept under RDSS. तो ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका उस तरह से खुपी से भी आएगा, खुपी से भी लाइन आएगा, इस तरह से भी जाएगा, तो ठीक हो जाएगा ये लाइन, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। ये अंडर प्रोग्रेस है और जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो आपका तो जैकपॉट लग गया फिर। क्वेश्चन 8, श्री निनोंग इरिंग। Thank you, sir. I've got the reply in detail, but I just like to put a word, and I would like a word from the minister, because already, he has just replied that it has to come from the central government, and this was also a central government subject. But in the far-flung areas, especially in these areas in Upper Subansiri or in Kurungkume, Karadadi, or even in Anini, the Bang Valley and all, you will find that the message of what is being shown here in the assembly or the day-to-day work of what the government is doing in the state has to be known by them also. So if we can really do some really the central government, with the help of the central government, if we can put more those stats and all these kind of television provisions, and also even the day-to-day activities of the government also shown, or even like the Prime Minister's Man Ki Baat, kind of things which can give a message to the people in the interior areas. If we could, upgrade the system, what would the minister like to say? Next, Sri Wangling Luangdong, start question 28. Reply नहीं देना है। Oh, you want to reply? हाँ तो बोले। Okay.
आपका तो सजेशन था ना। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर ने सही कहा, लेकिन ये है कि सबसे आगे हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आज हम लोग जो इस अगस्त मास में जो चल रहा है अरुण पर्वा, जिस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 9 फरवरी 2019 को हमारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को परमिशन ले करने के लिए जब आए थे, तो उन्होंने ये चैनल को लॉन्च करके आज जितने भी जो हम लोग का दूर दराज एरिया में कहीं में भी आज हम लोग का जो असेंबली का जितने भी जो यहाँ चल रहा है उसको लाइव देख रहे हैं, और ये जो है गिफ्ट फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और साथ साथ में ऑल इंडिया रेडियो ने पिछला 4-5 साल में काफ़ी जो उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया, और आज हम लोग ऑल इंडिया रेडियो का थ्रू से हम लोग लोकल डायलेक्ट्स में भी निशी में, मिसमी में, कमान में, ताई कमती में, वांगचो, तांगसा, नोक्ते, तागिन, अपातानी आदि, गालो एंड इडू मिसमी, ये सब जो है काफ़ी रेडियो से ट्रांसमिट होके रखा है। और साथ साथ में ये जितने भी जो ये हम लोग का ये एरिया ऑफ ट्रांसमीटर, जैसा हम लोग का ये 10 किलोवाट से 20 किलोवाट में अपग्रेड हुआ, बहुत जगह में अपग्रेड होके आज हम लोग का रेडियो ट्रांसमिशन जो है आपका लोकल में भी चल रहा है, सेपा में चल रहा है, रागा में, जीरो, तालिहा, जमीतंग, तवांग, हुनली, रोइंग, हवाई, हायुलियांग, तेजू, बासर, आलो, गेकू, मेचुका, बोलेंग, कोयू, पासीगा, तुतिंग, मारियांग एंड यंगक्योंग, ये सब जो है उधर में शॉर्ट वेव जो ये फ्रिक्वेंसी में लोग अपने अपने रीजन में रेडियो का ये ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी आगे हम लोग ये on the medium wave and FM channel of the entire AR network, including AR Itanagar, Pasigat, Tawang and Tejo, are available on Prasar Bharati's news on air app. Through this app, listeners are able to access AR All India Radio program at any location having internet connectivity on their smartphones also. तो ये है अभी फिलहाल हम लोग 100 वाट FM सर्विस एट बारीडी जो एंड संग्राम, वो भी आगे ये बहुत जल्दी फंक्शनल होने वाला है, जो हम लोग को ये INB से इंफॉर्मेशन मिला है। तो ये काफ़ी जो है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हम लोग का थ्रू दी IPR डिपार्टमेंट से हम लोग इनिशिएट करके, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएट करके हम लोग को काफ़ी हम लोग को ये सहयोग किया है, दूरदर्शन का मीडियम से भी, ऑल इंडिया मीडियम से भी, और दिस इज़ द वे, ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन to our power plant area. Thank you, sir. Start question 28, Sri Wanglin, Longdong. Speaker, sir, the supplementary to my start question number 28 would be thus. In the year 2018, 23rd April, the Department of Police had advertised 82 number of MTS, civil police, under the special package for TCL region. The package which was granted by the Union Government, Minister of Home Affairs in the year 2011 and 12. Most of the recruitment process of the 1,949 posts that were granted as special package for TCL region have been filled up. But certain remaining posts are yet to be done so. And out of these 82 posts were advertised in the year 2018. It's been almost 5 years. Why the posts could not be filled up? What are the reasons and the implications? I mean, the government of India has already sanctioned and approved long time back, and most of the posts have been filled. So why the remaining posts of 82
which were already advertised by the department? Why cannot it be taken up now? What are the reasons? Honorable Speaker, sir, yes, sir, honorable member is correct. In 2018, 82 posts of MTS was advertised by the PHQ, police headquarters, from police headquarters. But immediately after advertisement, Arunachal Pradesh state ये SSB was वो गठन हो गया था. तो गठन होने का कारण से जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो हो गया था उसको बंद कर दिया. And as of now, उसके बाद we have already written the requisition letter to the APP SSB, AP SSB. तो अभी इसका जो है इंटरव्यू जो है SSB करेंगे. और साथ साथ में सिर्फ आपका जो 82 पोस्ट सिर्फ नहीं है. As on today, हम लोग के पास जो पुलिस जो है इन डिफरेंट कैटेगरीज में 1883 पोस्ट वैकेंसीज है ऑफ डिफरेंट रैंक इन पुलिस डिपार्टमेंट. तो ये सब जो है इवन हम लोग बीच में ये ऑनरेबल स्पीकर सर जो हाउस का इंफॉर्मेशन के लिए बीच में हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट कोटा का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंटरव्यू करने का भी एक निकला था. तो वो भी हम लोग एसएसबी में दिया है. लेकिन एसएसबी उसको आगे इसलिए बढ़ नहीं पा रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट में रिट पिटीशन कोई चैलेंज किया कि कोटा का ऊपर कोटा कैसा होगा, क्योंकि हम लोग 80-20 रेशियो का कोटा ऑलरेडी है. तो वाई देयर शुड बी ए कोटा फॉर द डिस्ट्रिक्ट. तो इट इज़ इन द आई थिंक इट इज़ इन कोर्ट में है, तो इट इज़ ए सब्सिडीज. तो जिसका कारण से क्योंकि एसएसबी इज़ नॉट अंडर होम डिपार्टमेंट, जिसका कारण से शायद एसएसबी इज़ नॉट एबल टू परस्यू फर्दर माने इंटरव्यू. तो अभी एसएसबी जो है तो इसलिए टोटल हम लोग 1883 पोस्ट इंक्लूडिंग टीसीएल का हो सब टीसीएल का वाला हो सकता है कि इट इज़ ए स्पेशल पैकेज. तो इट मे टेक मे बी इट मे टेक वेरी सून, बट दैट आंसर विल कम फ्रॉम द एसएसबी ओनली. या I have a second supplementary. The Honorable Minister says that it will be taken up under APSSB. Now, when the APSSB will conduct the examinations, it's for all of us to see. Now, what my intention is, Speaker Sir, through you, is that once already an advertisement has been done by the department, so why can't this, as a special case, especially this, it's a Government of India package, be taken up by the department, 82 posts. So I think that will be very appropriate. In continuation with the special package posts that were already created and also done. So let it not be included in the APSSB. The department can take it up because department has already advertised in 2018. And also regarding the other posts, the general posts of 1,000 plus. But I think it should be in continuing with the different quota system of district-wise. I think that's very appropriate. All the district students or the, employees will get an opportunity. So the youth of the districts also. So that way I think that the department which is taken up as per the district-wise also, that's very appropriate in the present context. But my question, more pertinent in today's discussion is, why can't the department take up the advertisement which they have already done regarding that 82 posts? The APSSB, I do not know, I mean it says that it'll take time because of the writ petition. So we cannot include this special package post of 82 with the writ petition, what I feel. So I think if the Honorable Minister can take measures to see that these posts are re-advertised and done it departmentally as a special case. Thank you. But the writ petition applies to the same thing, even if it's being conducted by the department also. Anyway, Honorable Minister will reply. It's a policy Honorable matter. Speaker, sir, जो हम लोग एडवर्टाइज किया गया था, वो एडवर्टाइजमेंट जो है कैंसल्ड हो गया. So there is no point that advertise does not stand today. And after cancelling the advertisement,
we have already given the requisition to the APSSB. अभी हमको ये खबर मिला है कि from the SSB, I've got a letter that SSB have set a timeline in 3 category. 3 category में the time भी mention किया है. Class 10 तक जो qualified वाला class 10 का जो category 12 पास या graduate वाला वो category का बनाया है. अभी class 10 वाला जो I think ये MTS जो है class 10 का अंदर में आएगा, उसका advertisement date रखा है. They have fixed the date 3 category में. तो ये first category में आएगा कि 3/5/23, that is 3rd May 23 को first advertisement होगा. That is the post, any post of every department under class 10 level exam का वाला हो जो है 3 तारीख मई महीना को advertisement होगा. Hopefully कि ये जो TCL का जो स्पेशल पैकेज वाला जो MTS होता है कि इस 3rd मई 2023 को एडवर्टाइजमेंट होगा. थैंक यू. WPC जो डिस्पोज ऑफ हो गया इसका मतलब? नो, दिस आई थिंक दिस जो स्पेशल कोटा स्पेशल पैकेज वाला जो है TCL का, दैट विल नॉट कम अंडर द कोटा. दैट इज अ स्पेशल पैकेज मे बी. No, you were mentioning about some writ petition which has been No, filed. writ petition is about the district wise हम लोग एक दिया था जो across 25 district में हम लोग जो एक कोठा दिया था उसका ऊपर में एक चैलेंज है. So that is not possible till it goes off. Okay. One more. Next. One clarification. Clarification. Slight. Okay, please. In regard to the advertisement from the department, in regard to the special package, Government of India special package, not Arunachal, 82 posts that are remaining were advertised by the department. Here the qualification is class 8 pass. We have to take interview of that. Not class 10, class 8 pass. Like in other cases which were advertised earlier and also completed. No, class 10 means it comes जो भी नीचे में है 8 to 10 का अंडर में आता है. Class 10 जो है वो क्लास 8 जो है 10 का अंदर में आता है. फिर 10 के नीचे में और कैटेगरी नहीं है. 10 इज द लोएस्ट कैटेगरी, क्लास 10 जो है. तो सो अब देयरफॉर क्लास 8 पास विल कम अंडर दैट क्लास 10 कैटेगरी. थैंक यू. So, start question 44, Sri Navam Tuki. इस तरह क्वेश्चन 44 का जवाब तो मंत्री जी ने दिया है, लेकिन इसमें एक डिटेल्स मैंने मांगा था. कितना इंडस्ट्रीज है अरुणाचल में, मेजर, मीडियम और स्मॉल. सिर्फ नंबर दिया. लार्ज इंडस्ट्री 2, मीडियम इंडस्ट्री 19 एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 193. उसका नाम को भी दे देने से अच्छा था. बाद में उसका इंडस्ट्री का नाम लिस्ट को भी पब्लिश कर देने से ठीक होगा. और हम सप्लीमेंट्री प्रश्न फिर पूछना चाहता हूँ कि हमें मेगा फूड पार्क बंदादेवा में बनाया और बहुत अच्छा से इन्वेस्टमेंट हुआ. मेगा फूड पार्क यहाँ बनने से तो बहुत पैदा होगा, लेकिन हमको कभी सुनने मिलता है कि ये दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट में आता है. तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया कि नहीं है ये फूड पार्क बनने से पहले, या अभी लेने वाला है क्या? वो एक. दूसरा जो है मिनी फूड पार्क के लिए कुछ प्लान किया है क्या हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जहाँ पोटेंशियल एरियाज़ है, एग्रो बेस्ड पोटेंशियल एरियाज़, पार्टिकुलर फुट हिल एरियाज़ में, और जहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बेल्ट में, उसका मिनी फूड पार्क के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्लान करके रखा है कि नहीं है. और अभी एग्री हॉर्टी आप सबका प्रायोरिटी में है. गवर्नमेंट का स्पीच, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच में भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व दिया है. तो जहाँ जहाँ अभी प्रोडक्शन तो हर जगह से आ रहा है, लेकिन मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. एंड जहाँ मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरी है जगह जगह में. वो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी आप लोगों ने
प्लान किया है कि नहीं है, तो आप बताएंगे। Honorable Speaker, sir, Honorable Member, former Chief Minister, तुकी साहब का ये जो बोला हुआ है उसमें ये हमने लिस्ट बना के आपको दे देगा, लिस्ट ऑलरेडी बनाया है। इसमें 193 ये है, हाँ आपको तो ऑलरेडी डाटा दिया है और नाम भी है। और ओनली दो जो है लार्ज स्केल में आता है, दो एंटरप्राइज जो आता है वो जो है ब्रीवरी से आपका निर्जुली में और नामसाई में, ये ब्रीवरी जो है वो लार्ज स्केल में, बाकी जो है मीडियम और स्मॉल स्केल में आता है। और आप जो डेगापोर्ट पर का जो बांडोडवा का जो बात बोला है, इसमें जरूर कुछ हुआ। इसमें पहले तो ऐसा तो हमको लगा था 100% फॉरेस्ट क्लियरेंस भी था इनिशियल स्टेज में। उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो करके कोई कोर्ट में चला गया, कोर्ट से कुछ ये आया, कोर्ट ने भी क्लियरेंस दिया उसको फुट पार्क को चलने दो, हाई कोर्ट से भी उसको जो अभी जो आप फुट पार्क का आपने टेकअप कर रहा है उसको एग्जीक्यूशन को जारी रखो, ये ओवरऑल स्टेट के इंटरेस्ट के लिए है। तो उस दिन का ये हुआ है, फिर भी थोड़ा कुछ ये था, तो अभी उसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोग ऑलरेडी डाइवर्सन का भी है। एक्चुअली कुछ हिस्सा जो आसाम का ही था, वो डोली कोटो जो बांडोडवा एरिया है वो कुछ हिस्सा आसाम का ही था। आसाम से वो खरीदा है प्रमोटर ने, जो लीड प्रमोटर है वो आसाम से खरीद करके कुछ हिस्सा आसाम का, कुछ अरुणाचल का, एग्जैक्टली बाउंड्री है। तो अभी ये जो आसाम हिस्सा वाला भी अरुणाचल में हम लोग ऑलरेडी जियो टैगिंग में अरुणाचल में दिखा दिया, वो अभी अरुणाचल का हिस्सा बन गया। एल्स इतना ज़्यादा कुछ इनिशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं था, किंतु बाद में कुछ इधर उधर करके कोई इंटरेस्टेड ग्रुप आ गया, कुछ दिया है, कैश दिया है, कुछ किया, किंतु हाई कोर्ट का क्लियरेंस है उसको जारी रखने के लिए। और जो मैं जो आपका मिनी फूड पार्क का जो ये है, हम लोग 2-4 तो रखा था, अभी भी उसकी स्टडी कर रहा है, वो मेटेरियलाइज अभी तक नहीं हुआ है। कुछ जगह में जहाँ जरूरी है हम लोग भी तो रखा है 2-3 तो, किंतु अभी तक उसका जो ये जो मेटेरियलाइज नहीं हुआ टेक्निकली, तो अब उसका तो अभी प्रोसेस में सर। So the question hour is over now. I have received a request from Sri Mamanatung Minister, Sri Kumsi Sidiso, Honorable MLA, for leave of absence. I have allowed their request. Now we'll take up supplementary demands for grant for the year 2022-2023. Now, the House will take up the discussion and voting on supplementary demand for grant for the year 2022-23. The Chief Minister may please move the demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charge during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the head of demands entered in the second column thereof against demand number 1, 3, 4, 9, 18, 25, 31, 33, 44, 46, 47, 51, 63, 65, 67, 70 and 71. Now, the Deputy Chief Minister and Minister in charge, Finance, Planning and Investment, Power and Non-Conventional Energy, Tax and Excise, State Lottery, Economic and Statistics may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in the
third column of the order paper be granted to the minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 7, 13, 34, 36, 54 and 66. The Minister, Public Health Engineering and Water Supply, Department of Tirap Changlang Longding, and Information Technology may please move demands for demand numbers allotted to him. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 59 and 73. The Minister, Rural Works and Science and Technology may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of the demands entered in the second column thereof against demand number 26 and 49. Thank you. Minister, Urban Development, Municipal Administration and Government Estate, Civil Supplies and Consumer Affairs, Geology and Mining may please move the demands numbers allotted to him. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 22, 37, 57, 61 and 68. Minister, Health and Family Welfare, Women and Child Development, Social Justice, Empowerment and Tribal Affairs may please move the demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the head of the demands in turn in the second column thereof against demand number 11, 15, 74, 80 and 81. Thank you. The Minister, Home and Interstate Border Affairs, Rural Development and Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, IPR and Printing may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 27, 35, 42, 53 and 72. Minister, Industries, Skill Development, Textile and Handicraft, Trade and Commerce, Labor and Employment, and Cooperation may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers
be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 19, 20, 29, 60, 64 and 79. The Chief Minister may please move demand number allotted to Minister Youth Affairs and Sports, Water Resource, Environment and Forest. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the head of demand entered in the second column thereof against demand number 21, 23, 38 and 52. The Minister Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Veterinary, Dairy Development and Fishery may move the demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of the Government of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of head of demand entered in the second column thereof against demand number 24, 28, 43 and 48. Minister Education, Cultural Affairs, Department of Engineering Affairs may please move demand number allotted to him. Next page. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the orders papers be granted to the ministers in charge out of considered fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 14, 16, 75, 76 and 82. The Chief Minister may please move demand number allotted to Minister Tourism, Transport and Civil Aviation, Land Management. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the head of demands entered in the second column thereof against demand number 30, 41, 45, 56 and 62. All the supplementary demands for grant for the year 2022-23 has been moved and it's before the House. Any members willing to speak on the demands may do so. As convention, I think no one will take part, so I'll go ahead now. Now the House will take up for voting on supplementary demands for grants for the year 2022-23. The question is that the supplementary demands for the year 2022-23 be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The supplementary demands for the year 2022-23 are passed. Now we will take up introduction of the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2023. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may seek to move for leave to introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2023. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no.
I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge for Finance may now introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Bill Appropriation number 1, Bill 2023. The Arunachal Pradesh number 1 Bill 2023 is introduced. We'll take up the item number 2, consideration and passing of Arunachal Pradesh Appropriation Bill number 1 Bill 2023. Now the Deputy Chief Minister in charge, Finance, may move for the consideration of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move the Arunachal Pradesh Appropriation number 1 Bill 2023 be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is that clause 2, 3 and the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2, 3 and the schedule are adopted. Now, question is that the clause 1, enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. And the clause 1 enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may move for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Appropriation number 1 Bill 2023 be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The Arunachal Pradesh Appropriation number 1 Bill 2003 is passed. Item number 4, demands for grant for the year 2023-24. Now the House will take up discussion on budget estimates for the year 2023-24. Members who want to speak, please do so. Yeah. अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त वर्ष के जो बजट हमारे आदरणीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री श्री चौना मैन और जो हमारे वाज़िर आज़म अरुणाचल के श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में जो पेश किया है, इसको हम बहुत ही सुंदर कहेंगे, बहुत सजा के इसको दिया है। इसके लिए शुरुआत में मैं इसको शायरी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने की कुछ गम। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कशमकश है, रोज़ जीना है और रोज़ मरने का। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी सी कुछ कम है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे यहाँ विधायक बैठे हैं, सबका एक सपना है, सबका अरमान है, सभी चाहते हैं कि अपना क्षेत्र को विकास दर में कैसे इसमें गति ला सके। खेद है कि इसमें हम पूरा बजट पे नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बिंदुओं पे, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि आज हमारा ये जो हमारा बजट है इसको आज ही पास करें,
लेकिन फिर भी मैंने पहला मौका लिया हूं, इसलिए मैं कुछ Honorable member, this is not the discussion on the budget, this is a supplementary demands guy. It's not in the budget. Supplementary demands guy. Oh, sorry, sir. But still, you can always speak on the No, supplementary so demands. I'll speak on the budget, sir. I think, Honorable Speaker, sir, No, this is a budget discussion. it's a budget discussion. This is budget discussion. आप बजट बोला है तो Number 23-24. Is it the supplement? ये इनको बुला दो, secretary. Oh, sorry, sir. नहीं पूछ लेते, मैं पूछ लेता हूं उनको. कहीं कहाँ है? कौन सा अभी चल रहा है? Item number 4. Item number 4, na? Okay. Yeah, I beg pardon. This is discussion on the budget. So, honorable member may continue. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. तो जैसे मैंने कहा कि कुछ बिंदुओं पे मैं कहूंगा, लेकिन सर बजट डिस्कशन के शुरुआत में मैं हमारे जो केंद्र सरकार की बजट में एक हमारा सरकार का लाया हुआ एक योजना थी, इस पे मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा. पिछले साल 61,000 करोड़ का इस साल जो है 61,032 करोड़ का हमारा 30% मनरेगा में इसका कटौती हुई सर. पिछले साल 2022-23 में हाँ 75 और 85 करोड़ का उसका आवंटन हुआ था. लेकिन इसमें मैं यही कहना चाहूँगा सर, पिछली बार हमारा जो कोविड का जो आपदा थी, सबको कष्ट हुआ, लोगों को इसी से हम लोग जो हमारे मनरेगा के द्वारा ही लोगों को हमने संतुष्टि कराए, लोगों को नौकरी की तरह उनको रोजगार हमने उनको दिया. और ये जो है ये एक बहुत खतरनाक एक मैसेज जाएगी पूरा देश में और ख़ासतौर हमारा इधर अरुणाचल प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ के लोग हम जब जाते हैं बस्तियों में और ख़ासतौर पंचायती राज का, क्योंकि उन्हीं पे हम निर्भर करते हैं, तो वो कहते हैं कि मनरेगा जो है ये जो योजना है ये सभी के लिए भलाई होता है सर, सबका भलाई होता है इसमें. हमारा जो बेरोजगारी का समस्या भी इसका बहुत हल होता है. तो इसलिए इसका कटौती होना शायद मैं हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके खिलाफ मैं कहूँगा. लेकिन मैं हमारा आदरणीय वित्त मंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका तजुर्बा मैं जानता हूँ और उसका कुछ हल वो ज़रूर निकालेंगे. लेकिन सर, आई वुड लाइक टू से that in the Indian Constitution, where the preamble says that justice, social, economic, and liberty of thought, political expression, belief and equality of status and of opportunities. सर इसमें preamble में लिखा है कि हम सबको एक equal एक status देना है, एक लोगों को किस प्रकार से हम जागरूक कर सकेंगे, हमारा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को कैसे दिखाएंगे, उसको कैसे हम अवगत करेंगे, ये वो दर्शाता है. सही बात है सर कि ये हमारा जो इस साल का बजट है वो एक डेफिसिट बजट थी, लेकिन डेफिसिट बजट को मैं अच्छा बजट कहूँगा, क्योंकि अगर हम अपना जो योजनाएं हैं उसको हमारा यू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू इट्स योर लेंथ, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, गिर जाएगा. तो इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी को मैं तारीफ करूंगा कि
लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो हमारे स्टेट ओन रिसोर्सेज से भी या केंद्र सरकार के रिसोर्सेज से भी उन किस तरह से वो कैंची को चलाया है और सब योजनाओं में उन्होंने उसका उपयोग करने का या उसको किस प्रकार से उसको विकास दर में उसको ला सकेंगे, उन्होंने कोशिश किया है। लेकिन एक चीज आपने इस आपके जो बजट भाषण में आप भूल गए और वो था बेरोजगारी का। जो हमारा अरुणाचल के युवा है उनका भी सपना है, अरमान है, और स्पेशली जो अभी के जो एपीएससी जो फियास्को है, ये ने हम सबको एक मुसीबत की खटकड़ा में खड़ा कर दिया है। तो इन मुसीबतों को दूर करने के लिए सिर्फ आपने हमको एलोकेशन ऑफ फंड्स किए हैं, सब योजनाओं में आपने पैसा हमको आवंटन किया है, लेकिन हमारा भविष्य क्या है? आप आत्मनिर्भर का बात करते हैं कि आत्मनिर्भर में हम क्या कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको भी एक बहुत गौर से हमको सोचने की बात है सर। इसलिए मैं जो कहूँगा, मैं बहुत ही स्वार्थी कहूँगा सर। मैं जानता हूँ कि सर आपका जो बजट पेशगी में आपने बहुत एक अच्छा सुंदर बजट दिया है, बहुत रोजी बजट है। आपने जिस प्रकार से हमारा जीएसडीपी के लिए भी जो 22-23 से और आगे बढ़ा के इसको 37,870 करोड़ का आपने एक आवंटन दिया है, और किस प्रकार से हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज से भी, अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज से भी आपने किस तरफ से, जैसे सेंट्रल टैक्स में पिछले बार हमारा बहुत उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो ये तो आपको हम तारीफ़ करना पड़ेगा किस प्रकार से उसको हम आपको कर रहे हैं। जैसे इस बार आपने स्टेट ओन रिसोर्सेज से आप 3,412 करोड़ का आप इसको अवगत किया है, जो शायद 13% वो ज़्यादा है। ये भी आपका ये काबिल तारीफ़ है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण से शायद ये हो रही होगी, या आपका पूरा वित्त मंत्रालय की आपका टीम से। जो आपका डेफिसिट हुआ है, जिस प्रकार से आपने कहा कि वी हैव गिवन अ डेफिसिट बजट ऑफ 758.16 करोड़, तो ये शायद हमारा अमृत काल का जो 2047 को जो 100 वर्ष होगा हमारा स्वतंत्रता की, और हमारा अरुणाचल के 75 साल, शायद ये एक मार्गदर्शन होगा हम सबको कि किस प्रकार से हमको अपना जो विकास का डर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा सर, हम सिर्फ कुछ ही ये जो बिंदु है उसी पे मैं कहूँगा। तो एक तो हमारा बहुत एक छोटा सा चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही उसका बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। इसमें हमको यहाँ क्वेश्चन आर में भी इसको कहा गया, आपने उसका जवाब भी दिया है। तो जिस प्रकार से हमारे जितने भी गाम्स, बूढ़ीज या बूढ़ाज या गाम्स कहेंगे, उनके जिस प्रकार से आपने 2000 से 2500 किया और 1500 से 2000 किया, ये एक ऑनरेरियम, ये तनख्वाह नहीं है। लेकिन सोचना पड़ेगा सर, जब भी मैं गांव में जाता हूं सब हमको बोलते हैं कि आपका आवाज़ बहुत बुलंद है, आप हमारा उधर असेंबली में ज़रूर बोलिएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अन्य डिपार्टमेंट्स के भी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट को हो, चाहे हमारा वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, सभी में वो बेरोजगारी वाला बात वो आ जाती है सर। तो बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे अभी नौकरियां हैं, इसको हम क्यों हम इसको हम नौकरी नहीं इनको दे पा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाला बात है सर। चाहे हमारा लॉन्गडाउन सर ने कहा था कि पुलिस फोर्स में भी है, स्वास्थ्य विभाग में भी है, शिक्षा विभाग में भी है, कृषि विभाग में भी है, सभी विभागों में है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग इसको लोगों को अवगत कराएंगे, किस प्रकार से बच्चों को हम लोग इसको दाखिला कर सकेंगे, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सर।
और गांव का जो वेतन नहीं करेंगे लेकिन ऑनरेरियम है, अगले बार आप इसका जरूर संशोधन कीजिए, इस बार अगर नहीं हो पाएगा भी, लेकिन जैसे मैं कहा कि ये तो हमारा आखिरी बजट होगा और जो अगला बजट होगा वो तो वोटर अकाउंट्स में होगा। आपने हमारा पुलिस फोर्स में बहुत सारा उनको कुछ राशि आवंटन किया है, लेकिन एक जो मेरा एक रुकसिन का भी नाम लिया गया है सर, जहां आपने कहा कि स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इमरजेंसीज और फायर इमरजेंसी सर्विसेज ईच। सर ये 3 करोड़ ईच जब आप बोलेंगे कि जिस जगह, मैं सिर्फ मेरा नहीं कहूँगा, इसमें मेंचू का भी आता है, जांग भी आता है, रागा भी आता है, बोलेंग भी आता है, सिजूसा आता है, पालिन भी आता है, यूपिया भी आता है। तो इसमें सर जहाँ दिल्ली में से 400-500 का एक बोरा होता है और यहाँ एक दो जगह ऐसा होता है कि 5,000 रुपया का भी एक बोरा होता है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल हमने सुना था कि वो तो 8 करोड़ का आपने उसका आवंटन किया था, उसमें इस बार कैसा वो 3 करोड़ हो गया। तो इसमें भी आपको मैं कहूँगा कि आप इसमें थोड़ा आप सुधार लाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा हमारा, क्योंकि पुलिस फोर्स है, इमरजेंसी सर्विसेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको हम लोग जस्ट एट अ ग्लांस उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। तो इसमें आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर। जब आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो हमारे बिजली के जो सुविधा देने का और हमारा जब जल जीवन के विषय में बोलेंगे, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक है हमारा बिजली और एक है पानी। तो बिजली के जो कुछ कार्यक्रम है, खासतौर में एक आपको उस दिन चिट्ठी भी मैं दिया था और आदरणीय मुख्यमंत्री भी आपको लिखे थे कि हमारा जो अभी के जो मीरम मीकोंग जोनाई, ये कनेक्टिविटी है जो आपने ही हम सबको पैसा दिया और वो बहुत बढ़िया रोड बना है। लेकिन उसमें क्या है सर, वो जो बिजली के खंभे हैं उसमें वो पूरा रोड के बीच में आती है। तो उसके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा, इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें कुछ पैसा आप आवंटन कीजिए और ताकि वो पोस्ट जो है वहाँ से हटाया जाए, ताकि रोड में वो डिस्टर्बेंस ना हो। जल जीवन मिशन तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा इसको सबको जितने भी बस्तियों में पहुंचाने का, हर घर में नल करके आप शुरुआत कर ही दिया है। लेकिन सर रुकसिन जो है वो एक नया टाउन है, अर्बन एरिया है। मैं बहुत ही अपना जो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो शहरी विकास मंत्रालय को, मंत्री को खुद बैठे हैं। वहाँ पे पानी का वो किल्लत है, पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर। तो हमने इस बार खुद हम जाके देखा है, वो उयुयामगे बोल के एक जगह है, रेमी नदी में है, और वहाँ में जो नदी है, पानी है, उसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी से वो पानी इजीली आ सकती है। तो स्पेशली फॉर दिस रुकसिन टाउन, ताकि वहाँ पानी की किल्लत ना हो, दैट इज़ द गेटवे ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल, रुकसिन। तो उसमें उसका सुविधा के लिए आप ज़रूर, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए भी आप कुछ अमाउंट, टोकन अमाउंट होने से भी होगा, उसको सर्वे करने के लिए उसका जरूर आवंटन कीजिए सर। आपने जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे 5,615 पेंशन लोगों का केस आपने डिस्पोज किया है, जिसमें 4,953 लोगों को आपने अपना जो पेंडिंग केसेस क्लियर किया ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आप 1 करोड़ आवंटन किया इसको और उसको मजबूत बनाने का। सर इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा और हर बार मैं कहता हूँ, और पिछले बार भी किया था, इस बार क्वेश्चन आवर में भी आया था वो, लेकिन उसको टेकअप नहीं किया। वो सर है ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारे जितने भी विपक्ष के जो राज है, जितने भी राज्यों में विपक्ष है सरकार, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेते हैं सर। आपने यहाँ हमारा
न्यू पेंशन स्कीम को आपने अपनाया। बहुत सारे हमारे जो IAS ऑफिसर्स है या अन्य जो केंद्र सरकार से आए हैं ऑफिसर्स या जो हमारा क्रीम ऑफ द सोसाइटी बैठे हुए हैं, आपको किस प्रकार से आपको एडवाइस करते हुए, तो मैं आपका सलाहकार कैसा कहते हैं मैं नहीं कहूँगा। लेकिन सर ये जो आपने जो न्यू पेंशन स्कीम के कारण से बहुत लोगों को सर कष्ट मिला है। और मैं सुना हूँ कि एक दो लोगों को उनका जो पेंशन, जो उनका अपना बीबी है या उनके बच्चे हैं, वो भी उनको वो डिनाई हुआ है। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा सर। और क्योंकि गरीब लोग हैं, वो ना कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, ने हमारे लोग ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं। उनका अपना लेवल से जो कोशिश करा है, मैंने सुना है कि उनको दे हैव बीन डिनाइड द बेनिफिट्स ऑफ द पेंशन सर। और जो आप सर एक और बहुत मैं तारीफ करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री और आपको भी, कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री और हमारे जो CMA है, ये इसमें ये बहुत मददगार है हम सबको। मैं भी एक उसमें बेनिफिशियरी हूँ। बेनिफिशियरी मीन्स मेरी ओर से मेरा जितना भी हमारा वहाँ से, चाहे वो हार्ट ऑपरेशन हो चाहे किडनी ऑपरेशन हो, जिस प्रकार से हमको मदद मिला है, ये तो आई थिंक अन्य राज्यों से हम बहुत आगे हैं और उसको हम पूरा आपको इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसमें यही कहूँगा सर कि चाहे दिल्ली हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल्स हो, ऑफ कोर्स CMC चेन्नई इज एम्पैनल्ड, तो इसमें और एम्पैनलिंग का आप सुविधा, ताकि हमारा जो गरीब लोग जाते हैं बेंगलोर में या चेन्नई में या दिल्ली में, इनको एम्पैनलिंग के लिए, आप हॉस्पिटल्स का एम्पैनलिंग के लिए आप थोड़ा सा, स्वास्थ्य मंत्री को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आप थोड़ा सा जोरदार दीजिएगा। आप जब शिक्षा का विषय में आते हैं, मैंने पहले भी कहा सर, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपने एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा विभाग को, मंत्री को आपने अपग्रेडेशन एंड आइडेंटिफाइड स्कूल्स 200 करोड़ का आपने आवंटन किया है। उसके लिए ये शायद मैं सोचता हूँ बहुत हमारा जो शिक्षा विभाग है उसको सोच समझ के करेंगे। और जहाँ जहाँ बहुत नीड बेस्ड जो स्कूल्स है उसमें देना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल्स ऐसा है कि उसमें पूरा सुविधा है और उसके ऊपर और आप उसमें खर्च करते हैं। तो जो ज़रूरी स्कूल्स है उसको आप आइडेंटिफाई करके इनको देने में अच्छा है। जो आपने 500 करोड़ का आवंटन किया था फॉर 50 मॉडल स्कूल, जिसमें मेरा भी एक है बीलाट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने शिक्षा विभाग पे भी आपने बहुत गौर किया है। लेकिन आपका सर जो हमारे एक बहुत बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन और जो हमारा सबसे बड़ा एकदम हेडेक है, वो है हमारा नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों के लिए आप जिस प्रकार से आपने कुछ राशि आपने हमको आवंटन किया है, वो तो सिर्फ 50 लाख का है फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स। तो अवेयरनेस कैंपेन्स तो ज़रूरी है, लेकिन इनको और स्ट्रेंथन करना, उसको और सशक्त बनाने के लिए इसमें हमारा सरकार को मेरा अनुरोध है, इसमें आप ज़रूर आप इसमें और जोड़ दें। बागबानी, कृषि विभाग, मत्स्य पालन, इसमें जिस प्रकार से केंद्र सरकार का भी जो आवंटन आती है और आपकी ओर से भी जो आई है, हमने सुना है कि अभी जो कीवी प्रोडक्शन हमें वर्ल्ड में वन ऑफ इंडिया में हमारे 1 नंबर पे आती है, लार्ज कंट्री में हम 2nd रैंक में आती है, स्पेशली इन द लार्ज प्रोड्यूसर्स इन द ऑफ द खासी मैंडेरिन ऑरेंजेस इन लोअर दिबांग वैली। तो ये सब सर आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको शाबाशी देंगे, मुबारक देंगे और कहेंगे कि हाँ, ये आपका जो जिस प्रकार से आपने इन सबों में ध्यान दिया है उसको हम ज़रूर आपको हम साथ देंगे। लेकिन सर जब मैंने कहा कि हम अपना आप स्वार्थ बन जाते हैं, तब 2-3 बिंदुओं में फिर मैं आता हूँ सर।
जैसे NERSDS में हमने एक प्रोविजन दिया था एक रोड का, और वो जो है अभी NERDS स्कीम जो है वो बंद हो गया। सबसे पहले मैं ही लिखने वाला था, और पहले हम जो हमारा केंद्र मंत्री जो डोनर मंत्री थे उनके पास हम जब गए थे आपके पास वहाँ चौखाम में, तब इसका ये हुआ था। लेकिन वो जो रोड था इट वाज कनेक्टिंग ओयराम घाट, ओयान, सिकाबामन और सिकातोडे, एंडिंग एट रानी। तो ये अभी नेसिस में आ गया, तो जितने भी NERDS के स्कीम्स थे वो नेसिस में इसको क्लब किया गया। लेकिन इस बार भी मैंने देखा कि जो नेसिस में मेरा वाला जो रोड नहीं आया, बुरा नहीं मानता हूँ कि आपका भी शायद कुछ शायद रिक्वायरमेंट्स थे, आपका कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, आपका नेसेसिटीज़ थे, लेकिन बिकॉज आपने कहा कि हमारा अरुणाचल वी हैव टू टेक इट ऑन प्रायोरिटी, वी हैव टू वर्क टुगेदर। सो मेरा यही है, रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप ध्यान, आपका आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अगला बार इसको ज़रूर रखिएगा। और हमारे जो RWD ऑफिस है इसके लिए भी मैं ज़रूर मैं आपके सामने फिर रखूँगा, क्योंकि इसको अभी नहीं, बहुत पहले से इसको हमने RWD मिनिस्टर से भी कई बार उसका चर्चा किया। हमारे जो रुक्सिन सर्कल है, रुक्सिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अभी जैसे डप्पू आ गया, डप्पू मोली आ गया, उसके बाद डेतक आ गया, फिर कोरांग आ गया, फिर हमारा वो सीडो आ गया। तो इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें तो पिछले बार भी मैं तो लेगोंग डिस्ट्रिक्ट के लिए मांग रखा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं मांग रहा हूँ मैं, आपको RWD ऑफिस मांग रहा हूँ, वो भी सब डिवीज़न। सर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आप RWD डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, मंत्री साहब कहीं आई थिंक कहीं बाहर गए, लेकिन फिर भी RWD ऑफिस आप पूछ सकते हैं सर कि पासीघाट का RWD ऑफिस सिर्फ हमारा 37 कॉन्स्टिट्यूंसी से चल रहा है। इनफैक्ट हम तो सोचते हैं कि अगर कालिंग बोयंग बुरा ना माने तो RWD एक्शन ऑफिस तो हम रुक्सिन में ला के बैठा दूँ, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको वहीं रखिए। लेकिन मेरा जो सब डिवीज़न इस बार आप ज़रूर उसको अप्रूव कीजिए। मेरे इस जो आपका जो वित्त जो अभी आपका जो ये है वित्त वर्ष है, इसमें आप ज़रूर अब रखिएगा। इन दिस फाइनेंशियल ईयर मैं कोशिश आपको ज़रूर अनुरोध करूँगा इसमें आप रखिए। सर मैं आखिरी बिंदु पे आ रहा हूँ। एक तो है हमारा MLA लैड। सर MLA लैड में देखा हूँ सर, ये 3 करोड़ से कुछ नहीं होता है, कसम से सर। आप सब जितने भी आपने हमको SIDF में, RE में, B में हेल्प करने के बावजूद MLA लेट ऐसा है कि वो हम अपने जहाँ भी हम अपना टूर करते हैं, हम अपने क्षेत्र के दौर करते हैं, आप सबका वही है समस्या है। जब आते हैं तो कोई लोग बोलता है हमको कम्युनिटी हॉल दो, हमारा स्कूल को बनाओ, हमारा इरिगेशन चैनल ख़त्म हो गया, हमारा वो खेती का रोड बनाओ। सो ये छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं वो MLA लेट से ही होता है। मेरा शायद ये हाउस भी मेरे साथ पूरा समर्थन करेंगे कि हमारा जो MLA लैड इसको अगर 5 करोड़ नहीं करेगा तो कम से कम 4 करोड़ कर दो। और इस साल क्योंकि ये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब हम लोग को अप्रैल में ही दे दीजिए और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमको सितंबर अक्टूबर में दे दीजिए, ओनली 2 टाइम्स। ये पहले बिकॉज यू डू इट इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो इस बार मेरा एक सुझाव है, क्योंकि दिस इज आवर इलेक्शन है, उसके बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगी, लागू हो जाएगा। तो उससे पहले हम सब इसको हम अपना यूटिलाइज कर सके, अपना जो नॉट 3 करोड़, आई एम आस्किंग फॉर 4 करोड़। तो 2 करोड़ अभी दे दीजिए और 2 करोड़ सितंबर अक्टूबर में दे दीजिए। शायद आपका ऊपर जितने भी यहाँ लोग, जितने भी हमारे यहाँ विधायक, सब हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर जाएगा सर। अंत में सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुख भी लगता है, हमारा सारा MLA सब बैठे हमारे ईस्टर्न पार्ट के। सर आपने जो SIDF, RE, BE, इसमें तो आपका हमारा कोई भी शिकायत नहीं है। जिस प्रकार से हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमने वाजिर आलम का हम आज उसको आपत्ति ये दे दिया है,
उनका सिस्टम से, जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी का स्पोर्ट्समैन लग रहा हूं, लेकिन सही हकीकत है। मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन फिर भी आपको तारीफ करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, अच्छा लगता है सर। जिस प्रकार से आपने हमको 4 साल हम सबको एक साथ लेके चले, ये शायद एक सदन है, एक विधानसभा है जहां आपने किसी को न बीजेपी, न जेडीयू, न एनपीपी, न इंडिपेंडेंट नहीं देगा, सबको साथ लेके चले। तो ये काबिल तारीफ है, ये आप सबको बहुत बहुत सर उसके लिए मुबारक। लेकिन हमारा जो विधायक है, जितने वे पूर्वी क्षेत्र के, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम आभारी हैं, बहुत आभारी आपको मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सांसद को, नाम नहीं लेने, सांसद को, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा वहां राशि आवंटन किया। कलवर्ट है, मैं उसमें चलूंगा, कम्युनिटी हॉल है, उसमें हम उसमें पोनुंग नाचेंगे या डलोंग पोकडोंग करेंगे। रोड्स बनाए हैं, आप फ्लड कंट्रोल करेंगे तो हमारा खेती को भी वो रोकेगा, सबको रोकेंगे। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा कि हमको तो शायद जो हमारे बीजेपी के लोग हैं उनको शायद 5 करोड़ दिया होगा, हम सबको 3 करोड़ करके दिया होगा। लेकिन किसी को सर बहुत सारा, वो पूरा उसका कुबेर का खजाना पूरा खोल देता है। इस बार लोंगडोंग साहब हमको गाली देता है, पुसुम किम हुंग हमको गाली देता है कि तुम्हारे इलाके में इतना पैसा कहां से आया। तो अरे सर, आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो? मैं तो विपक्ष का हूं, हमको तो उतना ही मिलता है, कम मिलता है लेकिन फिर भी मिलता है। लेकिन वहां में हमारा सलाहकार भी बैठे हुए हैं, हमारा भूतपूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं, हमारा भूतपूर्व विधायक भी बैठे हैं, और सबसे बड़ा हमारा सर मुकुट पहना हुआ हमारा राजा बैठा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम हाईएस्ट, जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा, चाहे वो SIDF हो, चाहे RE हो, चाहे VE हो, हमारा वहां आवंटन किया गया। आप सबको कितना दिया हम पूछा है, सबसे पूछा है हमारा विधायक को कितना कितना दिया, नहीं, हमारा जरूरत से ज्यादा दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर विधायक बनना है तो विधायक बन जाओ ना, हमको फिर भेजो ना, संसद में भेज दो, मैं चला जाऊंगा। आप सबको दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो आप जरूर शिकायत कीजिए कि हमारा क्षेत्र में क्यों आप 15 करोड़ आप हमको RIDF ले लिया, SIDF, RE और B में 20 करोड़ दिया, और सब हमको गाली दे रहे कि आपका क्षेत्र में क्यों इतना पैसा गया है। तो आदरणीय वित्त मंत्री शायद उसका जवाब देंगे कि किस कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैं सोचता हूं, और मेरा डिमांड भी वही है कि 6 शेड्यूल होना चाहिए, हम सबको भी ऑटोनॉमी देना है, ताकि इक्वल जितना भी हमारा जो एरियाज है, चाहे ग्रेटर कामेंग, ग्रेटर सुबनसिरी, ग्रेटर सियांग, ग्रेटर लोहित या ग्रेटर तिरप, इन सब में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ग्रेटर बोर्ड बाद में सर। तो ये चीज को सर मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ताली हम मार दिए, हमको क्या नहीं मिला या क्या मिला वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन हमने क्योंकि ये हमारा आखिरी बजट था, इसको बहुत बहुत मुबारक मैं देना चाहता हूं। लेकिन देते हुए भी सर थोड़ा दुख के साथ, हमको भी बहुत दुखित है सर, क्योंकि जहां हमारे जो यातायात, रोड्स, स्कूल्स जिस प्रकार हैं, वो मेरा वो जो सपना मैंने कहा कि हमारा बहुत सारे अरमान है, वो अरमान नहीं हो पाए सर। तो अंत में सर दूर से आए थे साकी सुन के, दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, पर तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम सर। धन्यवाद सर। I have given enough time for Honorable Member Ninong Ering because he represents the opposite bench. So from now on, I would like to request all the members to restrict their time within 10 minutes, so that everyone gets an equal opportunity. And
someone has requested that the budget speech be circulated, but it's on the website. You can just access it on your monitor because there's an internet facility. And now, Sri Rodebui. मैं हमारे अरुणाचल के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और हमारे उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री के नेतृत्व में जो 2023 और 2024 के जो बजट पारित किए हुए हैं उसको मैं स्वागत करते हुए अपना विचार रखना चाहता हूं। तो हमारे सरकार केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो गद्दी संभाला, हिंदुस्तान को बदल दिया और बदल रहा है। और आज अरुणाचल में 6 साल के सरकार में, 6 साल के कार्यकाल में हमारे अरुणाचल भी काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है। तो इस साल का बजट में भी हमने जो देखा है, एग्री एलाइज से लेकर के, वाटर सप्लाई से लेकर के, रूट कम्युनिकेशन से लेकर के, हाइड्रो पावर से लेकर के, हवाई अड्डा से लेकर के काफ़ी बजट में बदलाव लाया है। तो आज केंद्र और राज्यों के बदौलत में आज हमारे दूरदराज गांव में भी जो बेसिक नीड्स है कोई कमी नहीं है। बिजली बोलो, सड़कें बोलो, आपका टेलीकम्युनिकेशन बोलो, वाटर सप्लाई बोलो, कोई कमी नहीं है। हर गांव में बिजली पहुंच चुका है, हर गांव में पानी पहुंच चुका है, पानी मिल रहा है। हर क्षेत्रों में रूट कम्युनिकेशन, सड़कें बन चुका है। और खास करके जो ऐतिहासिक जो हिस्ट्रिकल जो अरुणाचल में जो हमारा ज़रूरत को जो हुआ है, दोनी पोलो जो एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, तो सबसे बड़ी बात है हमारे लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रहा है। आज और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि अभी तेजू, पासीघाट और ये आपका जो जीरो, वो भी अभी एलजी लैंडिंग ग्राउंड बन चुका है, उसमें भी यार का सर्वे चल रहा है। तभी बजट में जो दिया है आपका जो अनिनी दिरंग पीएम डिवाइन का जो अंतर्गत जो बजट में दिया गया, ये भी हमारे अनिनी और दिरंग को भरपूर फायदा मिलेगा। और मैं अपर सुबनसिरी के खास करके दुमपुर जो 26 दुमपुर जो के विधायक होने के नाते मेरा भी एक विचार है। मैं अपना एक सबमिशन रखना चाहता हूँ कि अपर सुबनसिरी भी एक एलजी का बरसों से एक ज़रूरत है। अपर सुबनसिरी ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अपर सुबनसिरी में करीब पॉपुलेशन 2 लाख का आसपास है पॉपुलेशन, तो वहाँ पे एक एलजी का बहुत ज़रूरत है। इसलिए लास्ट ईयर से प्रपोजल भेज के मिनिस्ट्री से 2 बार टीम आ चुके थे और टेक्निकल एक्सपर्ट लोग भी आकर के फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले चुका था। तो हमारा जो माननीय राज्यपाल जी के भाषण में भी जिक्र किया है
की मिनिस्ट्री में कंसिडरेशन चल रहा है। मैं सरकार से आकर्षित और ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि थोड़ा सा उस पर लगन डालिए ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी जल्द से जल्द एलजी हो सके, क्योंकि वहाँ में एलजी का क्या ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि वहाँ तो बॉर्डर एरिया है और प्लस अपर सुबनसिरी और आसाम ईटानगर 300 किलोमीटर का दूरिया है, लंबी सफ़र करना पड़ता है, तो हमारा लोगों को काफ़ी तकलीफ झेल रहा है। अभी वहाँ पे स्काई वन जो हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है आपका सप्ताह में 2 बार, तभी भी बीमारी लोगों को जिसका जो हालत नहीं है, उन जो बीमारी गंभीर लोगों को कभी टिकट भी नहीं मिलता है, महीना भर वहाँ में वेटिंग करना पड़ता है। इसलिए जब हो सकेगा तो ये एलजीबी बन जाने से अपर सुबनसिरी लोगों के लिए भी फायदामंद होगा, प्लस डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सा इन फ्यूचर में काम आएगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसको जो हो सकेगा जल्द से जल्द इसको ध्यान देने से ठीक रहेगा। और उसका बाद मैं अभी अरुणाचल में हाइड्रो पावर सबसे इम्पोर्टेंस है। हम जब हमारा जो इकोनॉमिक पॉइंट का बात भी बोलने से हाइड्रो पावर अरुणाचल तो हिंदुस्तान का 50% हाइड्रो पावर यहाँ जनरेट कर सकता है। आज हमारा सरकार ने कमीन हाइड्रो पावर 600 मेगावाट का जनरेट उद्घाटन कर दिया। अभी दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो 2880 मेगावाट का अभी एमओयू साइन कर चुका है। अभी हमारा अपर सुबनसिरी में भी जो 2002 में एनएसपी ने टेक ओवर किया था अपर सुबनसिरी अपर प्रोजेक्ट 200 मेगावाट का, तो 2004 में ऑलरेडी जो डीपीआर प्रिपरेशन कर चुका था। बाद में गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होने के बाद में 2009 में आपका केएसके कंपनी प्राइवेट डेवलपर को दिया, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। इतना सालों से प्रोजेक्ट ऐसे पड़ा हुआ था। तो अभी 2022 में एनएसपी को दोबारा हमारा सरकार ने दोबारा हैंडओवर किया, तो एनएसपी कंपनी ने आज ड्राफ्ट एमओयू बना करके एक मिस्टर जोशी जो मॉनिटरिंग चीफ इंजीनियर है उनका हाथ में सबमिट कर दिया और रिपोर्ट वगैरह को गवर्नमेंट लेवल में पेश कर दिया। तो मैं हमारा सरकार खास करके हाइड्रो पावर मिनिस्टर डिप्टी सीएम साहब को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द एमओयू साइन करा के प्रोजेक्ट को भी इमीडिएट प्लीज कंक्लूड कीजिए, आपका टाइम पार हो गया। बाकी सर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बजट में काफ़ी 80 करोड़ का प्रावधान रखा है, ये काबिल तारीफ है। तो हमारे क्षेत्रों में भी 75 विलेजेस है, 75 विलेजेस में 10 विलेजेस अभी तक कनेक्टिविटी पहुंचा नहीं है। तो 10 विलेजेस में कनेक्टिविटी पहुंचा नहीं है, तो उसको भी इसी बजट का अंदर में अगर फुलफिल करा देने से हमारा लोगों का भी बड़ी मेहरबानी होगा, बड़ी शुक्रगुजार होगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो एग्री एलाइट में 400 करोड़ जो दिया है, ये सबसे हमारा आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। प्लीज कंक्लूड। और काफ़ी मददगार होगा इससे एग्री एलाइट का जो 400 करोड़ का जरिए है। थैंक यू। तो मैं अंत में इस बजट को मैं समर्थन करते हुए मेरा भाषण यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री Tarindakpa, प्लीज स्टिक टू टाइम।
You have 10 minutes. So I'll I'll take ring only- the bell when you are on 8 Thank minutes. you very much. I'd like to thank Honorable Speaker, sir, for giving me this opportunity to participate on the budget discussion for the financial year 23-24. I rise to speak on the budget, and at the very outset, I would like to congratulate Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister for running successful governance in our state of Arunachal Pradesh since its inception. I also like to extend my gratefulness to the officials of State Finance and Planning Department for preparing budget meticulously, covering all the sectors. It has been seen that this budget session 23-24 be guided by 6 pillars. That is, investing in health sector, investing in human capital, Atmanirbhar Arunachal Pradesh, synergy and convergence, and governance reforms and prudent financial management, and environment and protection and climate resilient infrastructure. यहाँ बजट में सबको सीबीओ को बुलाया एंड एक्सपर्ट लोगों को बुलाया यूनिवर्सिटी से, इसलिए इसका बजट जो है आई थिंक रियलिस्टिक में बनाया है. Yesterday also we participated in the governor's address. Motion thanks to the governor. उसमें भी किया है. मैं अपना उधर का सबमिशन थोड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे. सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो हम हमेशा बोलते हैं ये नया डिस्ट्रिक्ट है. इट इज़ न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा एट ए टाइम तो सब तो नहीं मिलेगा, दैट इज़ गारंटेड. लेकिन फिर भी कुछ तो इम्पोर्टेंट जो हमको ज़रूरत पड़ा है, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट को बनाया, लेकिन यू आर एलोकेटिंग वाली 70 लाख और जिसको तो बनाना है, अभी तो मेरा ख्याल में इलेक्शन के आगे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. आप इफ़ यू कुड सेंक्शन, हमारा जो सेंक्शन है 12 करोड़ 50 लाख है, दिस टाइम आप पूरा दे देने से इट कैन बी कम्प्लीटेड. क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि आपका 70 लाख एलोकेशन है, हम अभी 5 करोड़ का खर्चा करेगा. हु विल बियर दैट, एंड आई हैव टू टेक लोन फ्रॉम द अदर्स. तो इसलिए इस बार जो बजट में आप जो डिस्ट्रिक्ट आपने दिया है सेक्रेटरीट मिनी सेक्रेटरी, इसको फुल फंडिंग करने से हम लोगों का बिफोर इलेक्शन इट कुड बी कम्प्लीटेड. ये एक है. दूसरा है मेरा जो डिस्ट्रिक्ट में अभी प्लानिंग कर रहा है मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए. हमारा स्पीकर साहब ने हम लोगों को गाइड करके, बासार साहब और ये पक्के केसंग का ये एमएलए साहब लोगों को हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन दैट प्लान कुड नॉट बी सक्सेस ड्यू टू नॉन अवेलेबल फंड. तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि रिंग रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर न्यूली क्रिएटेड है, वो बनाने से मॉडल आप बना सकता है. नहीं तो अनटिल अनलेस यू कंस्ट्रक्ट द रोड, तो कहाँ में हम लोग बिल्डिंग बनाएगा. हवा में हम लोग आपका जो है वी कैन नॉट जस्ट मैप में बनाकर तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगा. सो मेरा ख्याल में जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट लोगों को आपका जो रिंग रोड होता है डिस्ट्रिक्ट का, इसको फाइनेंस करने से हम प्लानिंग कर सकेंगे. ये एक है मेरा रिक्वेस्ट. दूसरा है मेरा डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स गेम्स में आपको मालूम है ला टालर एंड ला ये जो लोग तो आपका जो बैडमिंटन हमारा उधर अच्छा होता है, बाकी जो स्पोर्ट्स भी है, लेकिन देयर इज़ नो फुटबॉल ग्राउंड. इंटायर डिस्ट्रिक्ट में एक भी फुटबॉल ग्राउंड नहीं है. इसलिए स्पोर्ट्स को यूथ को इंगेज करने के लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है. तो एक हमने लास्ट टाइम दिस अनुसार आपको भी दिया है प्रपोजल एक तो इस बार आग देने से अच्छा है. 6 करोड़ समथिंग का है. हम फुटबॉल फील्ड भी बनाएंगे, साथ में उसमें हमारा बीआईपी का जो है सेलिब्रेशन ये सब रागा में तो कहीं है नहीं, फील्ड नहीं है. तो इसके लिए आपका तरफ से इस बार बी में राग देने से ठीक है. आई हैव ऑलरेडी सेंड प्रपोजल अलॉन्ग विद दी कॉन्सेप्ट पेपर आपको दिया हुआ है सर, आप इसको कंसिडर करने से ठीक है. दूसरा है देयर इज़ नो एनी मीटिंग के लिए कहीं भी एक ये नहीं है, हॉल नहीं है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आप एटलीस्ट 2 करोड़ होने से भी या कितना करोड़ होने से भी एक कन्वेंशन हॉल या ये पार्टिसिपेशन उसमें मीटिंग शीटिंग के लिए देने से अच्छा है. ये इम्पोर्टेंट है. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब जाता है मीटिंग करने के लिए, तो हम तो फील्ड में करा देता है, फील्ड भी छोटा है. तो
इसलिए इसका भी ध्यान सर आपका आकर्षण करना बहुत ज़रूरत है। और बाकी जो है आप फायर इमरजेंसी सर्विस स्टेशन तो थैंक यू आपने दे दिया है, लेकिन इसको जो है हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हमेशा लगते रहा। होम मिनिस्टर भी बोला है जब तक अनटिल अनलेस फाइनेंस इज अकॉर्डेड तो नहीं कर पाए, इस बार कर दे, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स। और साथ में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग ऑनरेबल MLAs लोग भी स्पीक करेंगे। विद दिस thank you very much. I, on behalf of people of Kamla district, thank you this government, Pan Arunachal government और सबके साथ हम लोगों को लेकर गया, इसलिए धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you for being precise. Next, Sri Kentorina. Thank you, Speaker, sir. I am Kentorina, representing 2836 Nariko Assembly Constituency of Lordsiang District. Sir, here, out of many annual budget presented for 2023-24, I'll focus only on 6 or 7 points which are related to Antodaya. Number 1, life insurance over under Jivan Bima Yojana. I do welcome it. Number 2, premium payment to some categories of field workers such as Anganwadi worker, midday meal workers, Gaura Buris, and NM. This is also a good step for the poor. Then third, enhancement of honorarium to Gauras as last mile worker. Number 4, procurement of firefighting, which we have witnessed number of devastating in Arunachal Pradesh. So to avoid this, providing a firefighting vehicle is really good. Erection of Mahatma Gandhi statue at main gate of Assam. Sir, here, assembly. Here, sir, I want to add one more. The building which we are sitting today here, the land which is allotted to us, one great man is there. Who is he? Why should we forget today? He is late Dorji Kandu. His contribution should not be forgotten. Therefore, his statue also be erected in the main gate. It is my opinion. Then, sir, in number 6, really, LG at Vijayanagar. People who do not ride even bicycle, they have their air flight from Vijayanagar to other parts of the country. So it is a great step for us. I know that 2 tunnels are going to be completed within short period in Arunachal Pradesh. So personally, this is a way to shorten the roads in Arunachal Pradesh. We shall witness in that short. Planning of new road connection from district headquarters to ADC, then SDO, then ESC, then SHIO. This is a good step. But here I want to remind you, sir, that Koyu is such an ESC headquarters where if one wants to reach there, then either via Isyang or Leparada shall have to reach. Therefore, I need a connectivity from Nari to Koyu or Siji to Koyu. This is my demand. Here, another thing, sir. Adding this, sir, SIDF, presently it is kept 20 lakh or lakhs minimum. So rather, in addition to, I want to reduce it up to 10 lakhs so that I can give more beneficiaries or more schemes to the people. Regarding, sir, paper leakage,
In the newspaper, it is written that it is given paper leakage. Sir, I do not see it. It is a paper leakage. It was not leaked. It was stolen. It was sold to some candidates only, not to all. If it was leaked, then all candidates could have seen. Therefore, null and void should not be on my part. To me, merits should be listed. In place of corrupt candidates, vacancy will be occurred there. Against the vacancy cost, those merit list should be entered so that they can get the chance. Therefore, null and void is no need to speak in outside in our society in Arunachal Pradesh. Therefore, sir, this is a budget of peoples of Arunachal Pradesh, and therefore I do support it. Thank you very much, sir. Much. Sri Wanglin Longdong, please stick to time. का नाम नहीं नाम दिया था आपने? नहीं दिया। बहुत लंबा लिस्ट है। मैं बाहर गया था क्योंकि हमको जाना है, प्रोग्राम में जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक, आप शुरू कीजिए। थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। 10 मिनट। हाँ, तो 3 मिनट में आपका मैं माइक बंद कर दूंगा फिर। Speaker, sir, thank you for giving me this opportunity to take part in this budget discussion. The saying goes that deficits do not in themselves produce inflation, nor does a balanced budget assure a stable price level. William Vickery, Canadian-American economist, quoted. Before I begin, I must say the factual position is that I do appreciate the immense progress that Arunachal has made in these years. What we were and what we are now is to be observed by all. The roads are better, the communication and the transportation are much more stabilized, inter-district connectivity is in a sense more comfortable. Water supply and electricity has reached far-flung villages. These are the tremendous progress that has been made by our state, which we appreciate. And also one of the important facets of this budget is that the per capita income of the households have increased from 88,768 to 1,15,902 in the last 6 years. There is an increase of 30%, which is also a good sign that the households are being uplifted, their living standards are improving. The GST collections have gone high, and so does the VAT.
some of the particular schemes in this year's budget speech, which I do appreciate, is the Arunachal Uday scheme, wherein 100 crore has been earmarked for the maintenance and repairing and the construction of the dilapidated old Assam type structures in the various government departments. This is a good sign. Government must take off the government service holders. And also providing housing facilities to the police, and also a 5 crore for the underground surrendered persons. If this can be enhanced, one thing which I would like to emphasize because of the short term, which is killing the very fabric of our society and the youth of this day, is the tremendous influence of drug consumption and abuse in our society amongst the youth. This is a very challenging task. I think serious thought must be given by the government in a way of controlling this menace towards our society. One day, the very fabric and the soul of our people should not be broken by consumption of any drug abuse that may be, because we depend on our youth. The youth are our future. It is to whom we depend. Today, the youth are restless. Employment opportunities, other avenue scopes must be provided to them. So I feel that the government should give more emphasis on this. And of course, de-addiction centers have come up in various districts. In my districts also there are, but more need to come. One of the vastly affected drug addicts is also in my constituency, some of the villages. So I have, in my own level, created an infrastructure for the de-addiction center with my MLA lad. But MLA lad is too diminutive a resource for me to go in a larger scale. And I need more resources and fund for that. A village named as Tupi village, where it's almost completed. I think by the next 1 or 2 months, it'll start functioning. So if the government could help me in towards generating some sort of a fund, some notes were also submitted in this way, in this thing. And also, I would like to, as far as the health structure says on creating this. And one more thing as far as education is concerned, Vangcha Rajkumar Government College is celebrating Silver Jubilee this year. And to be precise, on the 18th of this month, a Silver Jubilee program is to be initiated there. Now there are, in spite of its 26 years or 25 years of its existence, there is no boys' hostel, inadequate girls' hostel, no proper academic and administrative blocks. So I feel the government should give more concern to this. And also, as far as the culture and heritage is concerned, last year the Honorable Deputy Chief Minister and the Finance Minister was very kind enough to allocate, sanction and approve the construction of a Narottam Cultural Heritage Center at Boduria, my village. And he earmarked an amount of 8 crore rupees
Honourable Member, please conclude. 2 You're minutes. running out of time. But this year, in his budget speech, I saw that he kept only 2 crore. Now, where is the rest 6 crore gone? In fact, whether the 2 crore is a minus or a plus, that I would like to ask. And I would also like to emphasize on Narottam. Narottam was truly a saint. And also, Honorable Deputy CM also, he knows that song very well by Bhupen Hazarika, Tirap Himanta, wherein it states that Nororo Uttam Narottam. Narottam was my forefather who converted into Vaishnavism in the year 1700 AD. And after his conversion into Vaishnavism, there was peace for 100 years between the Ahoms and the Noctes, who Please were in conclude. constant Honourable clash Member, because please of conclude. the salt wells. So I feel, sir, the last moment, that this fund should be enhanced. And also, I would also like to point, in continuation with Honourable Member Ninong Ering, that this year there was no RIDF, no other central projects for my constituency. Okay. Whether I would also like to ask through you, sir, whether am I also in the team Arunachal? So if I am so included in it, why can't the government also project my case in a sympathetic manner? Thank you. Thank you for giving me this time. Thank you. Thank you so much. Sri Navam Tuki. You have 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker, sir. I also rise here to participate the budget, general budget 2023-24, the budget speech made by Honorable Deputy Chief Minister, who is also a Minister in charge for finance. First of all, I'd like to express my thanks you for giving this chance, and would like to congratulate Honorable Deputy Chief Minister, the Finance Minister for a good health and strength to stand at least 2.5 hours during his budget speech. ईश्वर आपका और शक्ति दे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिकॉज 2 घंटा आधा स्पीच को तो उसको बोलने में तो बहुत समय लगेगा, और बाकी सब मेंबर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मे बी गवर्नर एड्रेस में भी मैं कल बात नहीं कर सका बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम। मैं पॉइंट 2 इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि नंबर 1, गवर्नमेंट ने हम लोग को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाया 4 साल पहले। वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी हम लोग ने 1-2 बार मीटिंग, जो कोविड पीरियड में 2 साल हम लोग मीटिंग नहीं हुआ, प्रपोजल नहीं हुआ, तो हम लोग छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले भी हम लोग ने प्रपोजल बना के भेजा था। उसका कमेटी का रिकमेंडेशन से खास इतना ध्यान नहीं आया, मतलब कंसिडरेशन नहीं हुआ, वेटेज नहीं मिला हमको, ऐसे लग रहा है। और इस साल भी मेरा डिस्ट्रिक्ट का तो मैंने मीटिंग करा के प्रपोजल भेजा है, उसको ध्यान में रखिएगा कि जब आपने एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाया तो उसका तो कोई पहलू होना चाहिए, उसका कुछ वेटेज होना चाहिए, और उसका कुछ अथॉरिटी भी होना चाहिए। तो उसका जो हर डिपार्टमेंट बेसिस में जो प्रायोरिटीज बनाया, जो क्रिटिकल गैप्स, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स अनएवॉइडेबल, जो डिस्ट्रिक्ट में जो जरूर चीज़ को रिकमेंड किया, उसको ध्यान में रखना चाहिए, उस बेसिस में कंसिडर करना चाहिए कि इन केस इंस्टेड ऑफ जो पीसीएल बेसिस में इंडिविजुअल अप्रोच को थोड़ा कम करके जो कलेक्टिव डिसीजंस को ज़्यादा ध्यान देने से ठीक होगा, ये मेरा सजेशन है। और दूसरा जो है, बहुत लंबा चौड़ा बजट स्पीच में तो हम लोग नहीं बोल पाएगा। जो
वर्तमान का जो जरूरी चीज़ है, जो रीबिल्ड, द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द ओल्ड बिल्डिंग्स. Old buildings means the offices, residential quarters in the state capital, the district headquarters, sub-divisional headquarters, ESC headquarters, circle headquarters, those administrative centers, which were built during 1970s, 80s, and they are in now deplorable condition. रहने का हालत नहीं है. उसको ज़्यादा सरकार में पहले बजट में भी कहा था, उसको ज़्यादा ध्यान दे के एलोकेशन तो उन्होंने दिया है, तो मिनिमम है, मैक्सिमम एलोकेशन दे करके इन लोग को अभी परमानेंट, पैरेलल नहीं, वर्टिकल आजकल तो ज़मीन मिलना भी कठिन है, तो उसको परमानेंट बिल्ड करने के लिए भी सरकार का पॉलिसी होने से ठीक होगा, ताकि सरकार का ज़मीन भी बचेगा और परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोगों को परमानेंट घर या ऑफिस मिलेगा. तीसरा पॉइंट, रोड मेंटेनेंस में बहुत पोर है. बाकी दोस्त लोग का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल है लेकिन वो मालूम नहीं है. लेकिन मैं अपना खुद का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रैक्टिकल में देखा हूँ. बिकॉज ऑफ ये लैंडस्लाइड्स फ्लड्स, जो बारिश सीजन में जो भी रास्ता पहले 2-3 साल पहले बना हुआ तो अभी निशान नहीं है, नाम निशान नहीं है, ऐसा हालत भी है. पर्टिकुलरली मेरा सगाली टू मैंगो रोड, PW रोड है, 5 साल पहले जो बना हुआ ब्लैक टॉपिंग रोड, अभी वो रोड तो चलने का लायक नहीं है, इतना पोर्ट्स होल्स है उसके, लेकिन उसमें मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है. और थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस फंड से तो कुछ होगा भी नहीं, वो तो 1 किलोमीटर भी नहीं बन पाएगा रिकारपेटिंग के लिए. ये सब जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज है, इम्पोर्टेंट जो नेटवर्क है, जहाँ में मेजर ट्रैफिक रोड्स है, उसको हर कॉन्स्टिट्यूंसी का आइडेंटिफाई करके उसको ध्यान में रखना चाहिए. तीसरा जो है PMJSY रोड मेंटेनेंस के लिए आपने एलोकेशन तो दिया है, लेकिन जो PMJSY रोड एलोकेशंस हम लोग तो इतना 1000 किलोमीटर रोड बना लिया, लेकिन अभी जो पहले बना हुआ रोड तो अभी ख़त्म हो गया, तो उसको अभी PMJ रोड जितना भी ख़राब हो गया, डिप्लोरेबल कंडीशन में है, उसको मेंटेनेंस के लिए भी फंड को इन्हेंस करना चाहिए. जो मेंटेनेंस फंड को थोड़ा बढ़ा के करने से ठीक होगा. नाउ कम टू दी हेल्थ एंड एजुकेशन. एकदम शॉर्ट जस्ट की पॉइंट में बोल रहा हूँ. जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि कम समय लेने के लिए, इसलिए हम बुलेट पॉइंट टेलीग्राफी के लिए हम बात कर रहा हूँ. इट इज नॉट लाइक समथिंग लाइक स्पीच. आपका 3 मिनट बहुत पहले पार हो गया. आपका 2021-22 अब सरकार ने ये साधन में आप लोगों ने कहा कि ये ईयर ऑफ हेल्थ, हम लोग तो बहुत खुशी है, सब मेंबर लोगों ने ताली बजाया, हम लोग सुनने में बहुत अच्छा लगा. लेकिन कहाँ बना है, पर्सनल भी तो पूछा था. और ईयर ऑफ हेल्थ में हम सोचा था कि सबका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा. हम लोग भी उम्मीद करता था कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 हेल्थ सेंटर जो हो, NEC का 2 बिल्डिंग अनकम्प्लीट है, वो कम्प्लीट हो जाएगा. CHC सगाली NEC का प्रोजेक्ट अब बस ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, बस सेकेंड फ्लोर तो बन जाएगा, वो भी उम्मीद करता था, वो तो हुआ ही नहीं है. तो कितना एलोकेशन और कितना फंड दिया होगा, लेकिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 1 पैसा भी नहीं मिला हेल्थ में, वो ईयर ऑफ हेल्थ. देन ईयर ऑफ एजुकेशन 2022-23 आपने डिक्लेयर किया, इस साधन में ईयर ऑफ एजुकेशन है. तो हम एजुकेशन मंत्री से भी मांगा था, आपका ईयर ऑफ एजुकेशन है 1000 करोड़ एलोकेशन दिया था, हमको भी कुछ तो दो. हम दोनों तो नाइबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, थोड़ा मिलेगा उम्मीद करता था, आमने सामने है तो, लेकिन मिला नहीं है. मेरा स्कूल का लिस्ट भी भेज के देखा, वो ईयर ऑफ एजुकेशन का भी आप लोगों ने हम लोग को पैसा नहीं दिया, लेकिन आप लोग कहाँ दिया होगा तो आपको पता नहीं. इसको भी आप लोग ध्यान में रखने से ठीक है. जहाँ जो क्रिटिकल गैप्स है, जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी उस एरिया में भी देखना चाहिए. जैसे मैंने कल कहा था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा था, इंजीनियरिंग कॉलेज तो स्टेट का है. आप NIT, ITI, नेरिस्ट,
RGU, यूनिवर्सिटीज़ है, ये जो इंस्टीट्यूशंस तो सब स्टेट का, सब नेशन का होता है। और आप अरुणाचल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगा, ये आपका स्टेट का होगा, पूरा नेशन का होगा। उसको ये मत सोचिए कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज सगाली में है, नवमतुकी का जगह में है, इसलिए उसको ध्यान कम रखा जाए। ऐसा तो इस प्रकार से नहीं सोचने से ठीक है, क्योंकि उसको बनाने से स्टेट के लिए इतना पैदा होगा, जो अभी जो आने वाला स्टूडेंट लोगों के लिए कितना बेनिफिट होगा, जो बाहर में जाएगा इतना खर्चा करके जाना नहीं पड़ेगा। मेंबर आप कंक्लूड कर। यस इट इज जस्ट लास्ट पॉइंट ओनली, लास्ट पॉइंट ओनली। मेरा ये है कि हमको मैं पूछा था कि ITI में कितना खर्चा होता है। ITI का बजट 1500 करोड़ है, तो भी वो लास्ट बाद में शिफ्ट हुआ, बनाया। लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो तो 150 करोड़ से तो कम नहीं होगा, या 200 करोड़ भी जा सकता है। और आपने दिया है 10 करोड़, पहले लास्ट ईयर 5 करोड़, इस बार 10 करोड़। इससे भी तो कुछ काम तो चलेगा, जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ को, बिजली, पानी और सड़क, ड्रेनेज वगैरह तो बन सकेगा। लेकिन और भी एडिशनल क्लासरूम बनेगा, और भी रेसिडेंशियल क्वार्टर बनेंगे, और भी हॉस्टल बनेंगे, उसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा। तो उसके लिए भी फ्यूचर में आप लोग कैबिनेट में अच्छा से चर्चा करिए। करना है तो अच्छा से करना है, नहीं करना है तो फिर उसके लिए भी आपका ऊपर में है। थैंक यू। नाउ लास्ट कितना लास्ट इज दैट जो ड्यूरिंग NDS कॉन्फ्रेंस एक्चुअली ऑनरेबल CM साहब ने वहाँ में कुछ कमिटमेंट दिया था। सगाली तो एक्चुअली डिवीजनल कमिश्नर में एक स्टेट हाईवे बनने के लिए, क्योंकि वो नज़दीक पड़ेगा, तोवांग, बोमडिला, सपा से नज़दीक पड़ेगा कि डायरेक्ट जीरो जाने के लिए, जीरो दापुर जो आलो पासीघाट जाने के लिए वो शॉर्टकट हो जाएगा। तो इसके लिए उसको इस बजट में ध्यान में रख दीजिए। थैंक यू। और लास्ट में MLA नो बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन आप मना कर रहे तो नहीं बोल पाऊंगा। इंडिविजुअली बोल रहा, लास्ट पहले भी बोला था कि MLA फंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी का हर सिटीजन्स को मालूम है, इंटायर पॉपुलेशन मालूम है कि ये हर MLA का एक MLA फंड होता है बोल के ना। इसी में थोड़ा सहारा है और वो लोग उम्मीद करते हैं, इसी से जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, मेंटेनेंस है, स्कूल चलाने का, हॉस्पिटल चलाने का, और गांव में जो भी छोटा मोटा काम है इसी से चला लेते हैं, देन लोग खुश है। तो उसी को मैं पहले भी बोला था, जब MLA का पास थोड़ा पैसा होगा तो काम भी अच्छा होगा, और ये तो अकाउंटेबल भी है, हर पब्लिक जानता है, एक एक पैसा का हिसाब होता है, इसमें तो मिसयूज करने का सवाल ही नहीं है। तो मैंने कहा था कि उसको थोड़ा इंक्रीज कर किया जाए। मैं बोलने वाला मैं अकेले को नहीं मिलेगा, अकेले मिलने से हमारा इंक्रीज कर दीजिए, बाकी को एजिटी रख दीजिए, ऐसे बोलना था। लेकिन सबको मिलेगा ना, 60 MLA को मिलेगा, इंक्लूडिंग मिनिस्टर को भी मिलेगा, CM को भी मिलेगा, DCM को भी मिलेगा, MLA तो बराबर मिलेगा, पब्लिक को, तो इसलिए पब्लिक को मिलेगा, MLA को मिलेगा पब्लिक के लिए। गलत मैसेज चला जाएगा, MLA तो पब्लिक है ना। MLA इज एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक, एप्लीकेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी का हम लोग तो एप्लीकेशन है, मेमोरेंडम है, वी रिप्रेजेंटिंग दी असेंबली स्टेट गवर्नमेंट। सो उसको इस बजट में 5 करोड़ किया जाए। ओके, और बोलने नहीं दे रहा है तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फुरपा सरिंग ऑनरेबल MLA, थोड़ा समय का ध्यान रखिए, बहुत है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि सर आपका घंटी ना बजे। मैं केवल 3 बिंदुओं को मैं छूना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले एक सुनहरी जो बजट जो पेश किया है उसके लिए मैं टीम अरुणाचल के हमारे जो लीडर है, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री और जितने भी जो मंत्रीगण हैं, आप सभी को मैं अपने जिला की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं भी इरिंग साहब वो अभी निकल गया है, इन्होंने जिस तरह से अपना एक बहुत ही अच्छा लाइन के साथ उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया था, मैं भी सर उसी को मैं नकल करते हुए कुछ लाइन में कहना चाहूँगा। काश
इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, काश इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, किसानों, गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों का दिल खुशहाल कर जाए। वाह वाह। जैसे कि सर मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 3 बिंदुओं को मैं छूना चाहूँगा। मैं ब्रिज के विषय में, रोड के विषय में और बड़े बड़े चीज़ों के विषय में मैं आना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी जो प्रवक्ता है यहाँ पे सभी उसको छू रहा है। तो मैं ऐसा 3 बिंदुओं को मैं चुनाव करूँगा। उसमें से मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देते हुए, हमारे जो वित्त मंत्री है आपको भी धन्यवाद देते हुए, कि जो युवाओं वर्ग के लिए जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, उनके लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इससे बहुत से, खास तौर पे मेरे जिला में, मेरे क्षेत्र में बहुत से युवाओं को जो पढ़ा लिखा है उनको मदद मिल रहा है। अगर उसका बजट और बढ़ा दिया जाए तो मेरा ख्याल से ये पूरे राज्य के लिए ये फायदामंद रहेगा। साथ ही साथ आज़ादी के हमने 75वां वर्ष हमने धूमधाम से मनाया हमने, लेकिन हम जो अरुणाचल प्रदेश आज जिस मुकाम पे है, जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, हम लोग लेकिन भूल रहा है कि हमारे बीच में भी एक कौम रहता है जिसको एएलसी कहता है, एजेंसी लेबर कॉर्प। तो उसको बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया पिछले 75 वर्ष। आज हमारे अपना सुरक्षा बल हमारे साथ में, पुलिस हमारे साथ में, सभी लोग आज इंडियन आर्मी है। लेकिन ऐसा भी एक दौर रहा अरुणाचल प्रदेश में, एएलसी को हम लोगों ने पुलिस बना के उसका सहयोग हम लेता था। लेकिन ये जान के तकलीफ होता है, दुख लगता है कि जब 45 वर्ष जब होता है, उनको जबरन उनको नौकरी से रिटायर कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहा है एलसी के लिए? साथ ही साथ जब भी कहीं दूर दराज इलाका में, आज भी ऐसा बहुत सा जगह है अरुणाचल में, हमें एलसी को लोड कैरियर के हिसाब से उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग राशन उसको हम दोने देता है। ऑफिसर अगर पैदल जाता था उसका बेडिंग, बिस्तर, सभी कुछ उनके ऊपर चढ़ा के हम लोग आगे का काम करता है। और जब भी नेचुरल कैलेमिटीज आता है उस वक्त भी एलसी आगे रहता है। और खास तौर पे जब इलेक्शन जब होता है, एलसी का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोगों ने बदले में क्या दिया? 75वां साल हम लोग मना रहे हैं। और मेरा एक विनती रहेगा अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री से, कि इनका जो सर्विस जो लेंथ है 45 साल से करा के कम से कम 60 साल उनको भी दिया जाना चाहिए, ताकि 45 वर्ष के बाद वो कहाँ जाएगा, वो क्या खाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, वो इलाज कैसे कराएगा? ये बहुत ही सर, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोगों ने इनजस्टिस किया है, ये दिस इज इनह्यूमन बिहेवियर हम लोगों ने किया है। क्योंकि ये सरकार जनता को प्यार करने वाला सरकार है, अरुणाचल को प्यार करता है। अगर हमारा वो एलसी लोग ये असली अरुणाचल है, वो
साथ ही साथ हमारे जो मजदूर और बहुत से मजदूर हैं हमारा बहुत से विभागों में, हम लोग उनको क्या दे रहा है? हमें ये इस सदन में कह के बहुत कष्ट हो रहा है कि जब एक मजदूर का मां बेटी जब बच्चे जन्म देने के लिए हॉस्पिटल जाता है, हम उसको केवल 1,000 रुपये देता है। अब ताजुब का बात है, 1,000 से क्या होगा? मेरा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री से निवेदन रहेगा कि ये 1,000 को कम से कम बढ़ा के 15,000 या 20,000 किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनको जो पेंशन के रूप में केवल 150 रुपये दिया जाता है, वो ऊंट का मुंह में जीरा वाला बात होगा ये, तो इसमें भी गौर फरमाना चाहिए। साथ में हमारा जब भी जो मजदूर भाई जब रिटायर होता है तो उनको भी कम से कम 5 लाख रुपया उनको देना चाहिए, ताकि वो अपने जो रिटायरमेंट के बाद में उनको बहुत सा ऐसा है जो बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। सर मैं खत्म होने सर, हम लोग सर अध्यक्ष महोदय लेबर सेस के नाम पे हम लोग 100 करोड़ हम लोग कलेक्ट करता है, और हम लोग बदले में हम लोग क्या दे रहा है? गमबूट, मच्छरदानी। हमको नहीं लगता है कि हमारे जो मजदूर रहे उनको गमबूट का आवश्यकता पड़ता होगा, उनको छत्ता का आवश्यकता पड़ता होगा। मेरा ख्याल से हमें ये जो लेबर सेस का जो पैसा जो कलेक्ट होता है, इससे उनको मकान बना के देना चाहिए, घर बना के देना चाहिए, उनको रोटी देना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए, उनको हेल्थ का सुविधा देना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी होता है लेबर सेस से, सरकार के तरफ से जो भी प्रावधान हो आप वो दिए। मैं ज़्यादा और समय को नहीं खींचते हुए, हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है सिक्किम, वहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत शायद 15 या 16 लाख में एक लेबर को सरकार की तरफ से एक घर बना के दे दिया जाता है। अगर वही मॉडल हम अगर अपनाएगा तो ये बजट जो है पीपल फ्रेंडली बजट है, पीपल ओरिएंटेड बजट है। अगर ये सब हम लोग काम कर देगा तो मेरा ख्याल से ये बजट एक ड्रीम बजट रहेगा सर। इतना कह के मैं अपने वक्त को वहीं खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री लोम्बोतांग। Mr. Speaker, sir, I entirely agree with the beautiful budget presented by Honorable Deputy Chief Minister, which can be considered as pro-poor and pro-people budget. Therefore, I stand here to support that the budget be passed. Actually, being the leader of the principal opposition in the House, I would have opposed the budget. But this beautiful budget never gives any scope to criticize and to oppose. That is why I am bound, and we are bound to support this budget. While supporting this budget, I would like to now sum up with few requests to the government through you, sir. Number one is regarding fund allocation to few individuals. Sir, fund allocation देने से अटेंशन चीफ मिनिस्टर सर का और डिप्टी सीएम सर का भी ड्रॉ करने चाहता हूँ आपका माध्यम से सर, कि फंड एलोकेशन कोई इंडिविजुअल मांगने से, कहीं कुछ स्कीम्स टेकअप करने से हो सके तो हम लोग इंसिस्ट करना चाहिए कि वो
कॉमन इंटरेस्ट में हो, जनरल इंटरेस्ट में हो। कि कोई कोई जगह में ऐसा हो गया, मैंने बहुत देखा कि प्राइवेट इंडिविजुअल रेजिडेंस में लिंक रूट बनाने के लिए बहुत स्कीम हमने देखा। प्राइवेट होटल्स में, प्राइवेट रिजॉर्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी का बोलो, रूट का बोलो, ये सब भी हो रहा है। तो उसको भी कर देना है, लेकिन सबसे पहले जहाँ रूट नहीं है वहाँ पहले हमारा रूट हो, जनरल रूट हो, which will remain as the lifeline of the people. सर, एक ऐसा भी हमने देखा इस साल अभी कि अंदर अनटाइड फंड एक वेलकम गेट बनाने के लिए 50 लाख रुपया, सेम प्लेस में उसी जगह पे इनदर पे 50 लाख रुपया SIDF से। तो मेरा कहना यही है, हमें स्कूल बिल्डिंग बनाने दीजिए, जरूरी होगा तो हमें स्कूल कंपाउंड वॉल बनाने दीजिए या सड़क बनाने दीजिए। सबसे पहले सड़क हो, उसके बाद गेट। गेट तो कितना 1 करोड़ रुपया का गेट बना के इंडिया गेट जैसा बनाएगा क्या? हमें इंडिया गेट एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया गेट नहीं चाहिए इन द रूरल एरिया। 1 करोड़ रुपया का गेट क्यों बनाएगा? इरिंग साहब जब MP था हमारा, वहां में जो 2 लाख रुपया दिया था उससे गेट बना लिया हम लोग, दाम्बुक और लोअर दिबांग वैली, ईस्ट सियांग के बाउंड्री एरिया में। पासीघाट जे आप भी वहाँ से घूमने जाने से देखेगा, पासीघाट JN कॉलेज का सामने ग्रीफ वालों ने भी बनाया नेशनल हाईवे के ऊपर में, वहाँ भी तो 3 लाख रुपया कहाँ लगा? बट व्हाई 1 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्टिंग गेट, रूरल गेट? मैंने ऐसा न हो, कीजिए। गेट भी ठीक है, एक होने से काफ़ी है। 50 लाख एक गेट होने से, कोई अरुणाचल में गेट तो नहीं बनाया होगा ऐसा 1 करोड़ का। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे। अलॉटमेंट देने के टाइम में गेट ऑलरेडी एक तो दे चुका है और डबलिंग उसमें न हो, और बता भी देना चाहिए था। देन सर, मेरा रिक्वेस्ट यही है, अभी जस्ट टू सम अप माय पार्टिसिपेशन, रिक्वेस्ट यही है कि जितना भी बजटेड अमाउंट है इसको खींचातानी भी करके CM और डिप्टी CM सर दोनों जितना सके इतना ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, सब जगह के लिए। कभी कभी लास्ट रिसेंट पास्ट में देखने को मिलता है कि केवल 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही कन्फाइन हो जाता है सारा का सारा पैसा फंड। ऐसा न हो, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, और उसके लिए ये देखें। और तुकी साहब ने जैसे बोला, CM साहब एक बार मीटिंग में भी यही बताया था कि एक स्कीम लेके आता है और उस सब को एवॉइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी गठन किया गया कि एवरीथिंग शुड कम थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी से भेजने से वहाँ से होता है नहीं है, तो ऊपर से इम्पोज होके आ जाता है फंड लेने में। फंड लेना बहुत अच्छा है, दे दीजिए, ये बात नहीं है कि नहीं देना है, दे दीजिए, लेकिन वो फंड भी अच्छा यूटिलाइज उसका भी हो और अच्छा काम में हो, पब्लिक के लिए हो। इंडिविजुअल बेस स्कीम नहीं देने से बहुत अच्छा होता है। SIDF MLA का जो होगा वही रूट बनाने में, बिजली ठीक करने में लगेगा, और जितना प्राइवेट भी इंडिविजुअली मैनेज किया हुआ स्कीम तो ओनली फॉर इंडिविजुअल ऐसा हो जाता है। तो इट मे बी ए वेरी बैड प्रेसिडेंट इन नियर फ्यूचर। विथ दिस
I extend my sincere thanks to you, sir, for giving me the chance. Thank you. Next, Tanya Soki, honorable member. Tanya Soki. Hayang Mangfi. Speaker sir, I rise here to support the budget presented by Honorable Deputy Chief Minister. I must say this year's budget is an inclusive budget. Especially this year's budget, I must also say, is dedicated to the youth of the state. Because the youth's aspiration and their livelihood opportunities has been reflected in the budget. सभी सेक्टर्स को कवर किया है, चाहे वो क्रिएशन ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, और ओवरऑल में सबसे बड़ा बात तो जो स्ट्रेटेजी इस बजट को बनाने में जो प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के टीम ने बनाए हैं, आई ऑल्सो मस्ट से दैट आप लोगों ने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को यूज़ किया एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल. कम धनराशि है फिर भी बेसिक रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने फुलफिल किया, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता. दिस इज़ अ हरक्यूलियन टैक्स आई मस्ट से. और मैं ये चीज़ भी मानता हूँ, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस एंड प्लानिंग के है, अरुणाचल के लिए और ये सदन के लिए फादरली फिगर है. चुनाव कभी गलती कर नहीं सकता, कभी इनजस्टिस कर नहीं सकता, ये भी है. तो हमारे स्टेट के जो इंटरेस्ट है सारा चीज़ को कवर किया. और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनके लीडरशिप में मैं वंस अगेन आप दोनों को, टीम अरुणाचल के लीडर को सब बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि स्टेट का इंटरेस्ट को आप लोगों ने बहुत अच्छा से टेकन केयर किया. और इस बजट डिस्कशन को पार्टिसिपेट करते हुए सारा चीज़ तो आप लोगों ने किया, मैं सपोर्ट कर ही रहा हूँ. जाते जाते मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक चीज़ बताऊँ. सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है. जितना भी प्रो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लोगों के भलाई के लिए आप लोगों ने अब तक जो कर रहा है वो तो स्टेट इंटरेस्ट में कर रहा है. लेकिन जो रूरल एरिया है इस पर भी थोड़ा सा हट के ध्यान देने से ठीक है. अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हेल्थ सेक्टर का आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बना लिया है, स्टेट कैपिटल का काफ़ी रोड कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट बना लिया है, सारा चीज़ तो कर लिया है. हम लोग जैसे ताली जैसे, चैंगटाजो जैसे, जो रूरल नाचो जैसे कुछ इवन अंजाव में एक अंजाव वाला का कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम लोग का रिक्वायरमेंट्स थोड़ा डायनामिज्म अलग है. हम लोग को हाईवे तो नहीं चाहिए लेकिन छोटा सड़क होने से भी पक्का सड़क चाहिए. और सबसे बड़ा बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक ये दुखद मेरे सिर्फ नहीं है, सरकार के लिए भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिफाइड नहीं है. 70% ऑफ विलेजेस आर स्टिल अनकनेक्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी. तो स्पेशली जो मेरा 3 सर्कल है, पीपू है, ग्यावेपुरंग है, सवा है, आज तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं है. तो इस दौर में, डिजिटल का दौर में, हम इलेक्ट्रिक ही नहीं पहुंचा सकेगा सर. ये भी एक सोचने वाला बात है. इस पर थोड़ा हमारा मिनिस्टर इंचार्ज DCM सारी है, आप हमारा पिता समान है, थोड़ा गौर करने से तीखे. और दूसरा चीज़ सर, हम एक चीज़ 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, डिपार्टमेंट का बी बनाते हुए इसमें सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है. क्योंकि कुछ जगह में, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ओवरलोडेड है और हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में नील है. स्पेशली RWD डिपार्टमेंट का मैं रेफ़र करता हूँ. माना कि लास्ट टेन्योर में क्या हुआ होगा मालूम नहीं है. हम लोगों का तो कॉन्स्टिट्यूंसी डिवीज़न जो एक है, बामिंग डिवीज़न है, जिसमें चैंगटा जो भी आता है, सारा ऑनगोइंग वर्क्स जो है बामिंग में तो है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब में मेरा नील है और वो लास्ट 3-4 ईयर से यही चलते आ रहा है। और जब भी बोलेगा तो ऑन गोइंग स्कीम्स बहुत है, इसलिए नया स्कीम नहीं लेगा। सर इस चीज़ को भी ध्यान देने से ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोलते हो, क्योंकि ज़्यादा बोलेगा तो फिर आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। मैं एक लाइन कोट करके ख़त्म करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी का लाइन है, वी वॉक टुगेदर, वी मूव टुगेदर, वी थिंक टुगेदर, वी रिजॉल्व टुगेदर, टुगेदर वी टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। ये मंत्र जो है हमारे पेमा खांडू जी और हमारे DCM साहब जी अरुणाचल में लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं इस बजट को सपोर्ट करते हुए मेरा पार्टिसिपेशन यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। श्री गोकार बसर। गोकार बसर। Thank you, Honorable Speaker, for giving me chance to participate in budget discussion 2023-24. Sir, I am representing 29 Basar ST Assembly constituency, and I, on behalf of my people, would like to thank young and decisive Chief Minister and most experienced Deputy Chief Minister who is holding finance and planning for practical budget for the people of our beautiful state. तो सर मैं 29 बसार का और लपारादा डिस्ट्रिक्ट के विधायक होने के नाते मैं हमारा मोस्ट डिसिसिव चीफ मिनिस्टर और हमारा एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर को मैं थैंक्स देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा लफारादा का जो वैल्यू को समझते हुए इस बार हमें भी डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल के रूप में भी नोटिफिकेशन दिया गया है। इसीलिए मैं सभी कैबिनेट मिनिस्टर और हमारा उस जुरिडिक्शन को MLS को मैं थैंक्स देना चाहता हूं। और प्रॉम्प्ट एक्शन पे आते हुए हमारा इस गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में भी जो फंड प्रोविजन रखे गए हैं, तो उसी के लिए मैं मेरा जनता की तरफ से मैं थैंक्स देना चाहता हूं। और स्पेशली नया डिस्ट्रिक्ट है, बहुत दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल के भी जो फंड प्रोविजन रखे गए हैं, तो उसी के लिए भी मैं थैंक्स देना चाहता हूं क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट होने के कारण बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इस बार जो है हमारा रीजन, जैसे कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमेशा अभी हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर सर्कल पे, हर ADC हेडक्वार्टर्स पे आके उस जगह को, हर जगह को देख के जो डिसीजन ले रहा है वो बहुत लाभदायक हमारा जनता को हो रहा है। जैसे कि हमारा लपारादा को डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट देने के कारण भी सर ने उस हमारे जगह पे 2-3 बार विजिट किए हैं, उसके नतीजा जो है हम जनता को मिल रहा है। जिस तरह उन्होंने तुरंत बाय रोड से हमेशा, मतलब बसर में भी बाय रोड से आता है, आलो बाय रोड से जाता है, उनके इस 3-4 साल का जो उसके कार्य में हमारा जो रोड कम्युनिकेशन भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। इसीलिए डिविजनल कमिश्नर देने के कारण भी वही है। हमारा उस अभी ऑलमोस्ट हर हाईवे जो है कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि हमारा बासर से अभी 2 घंटे दापो लग जाएंगे और आलो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, और उसके बाद हमारा लिकावली जो है 2 घंटे पे पहुंचते हैं, और उसके बाद फसीगात जो है 2.5 घंटे पे पहुंचते हैं। तो मेरा विनती यही रहेगा कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड प्लान, जिसमें हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के रोड्स को इम्प्रूव कर रहा है, मैं हमारे मुख्यमंत्री को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के थ्रू से हमारा ओल्ड बाजार तो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट टाउनशिप के, और RIDF पे भी जो फंड प्रोविजन रखे गए थे उसे हम टाउन के रास्ते तो कंप्लीट कर पाए। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली इस बार जो नया इस हेड पे जो नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ है वहाँ पे कुछ फंड रखे गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सर फंड के कारण काम नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए मैं आपका ध्यान सर स्पीकर का थ्रू से खींचना चाहता हूँ। और उसके बाद सर अभी जो हमारा बजट पे जो प्रोविजन रखा गया है फायर स्टेशन के लिए, तो हमारा वहाँ पे फायर टेंडर जो है बासर सर्कल पे भी, बासर मेन हेडक्वार्टर पे भी फायर टेंडर बहुत कमी हो रहा है। हमेशा फ्रीक्वेंट फायर इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन
एक ही फायर टेंडर से वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद एक तिरबिन, एक मेरा ओल्ड सबसे पुराना सर्कल है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी फायर स्टेशन ही वहाँ पे नहीं है। तो मैं हमारा मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फंड प्रोविजन में ज़रूर हमारा त्रिवेणी को भी एड्रेस कर दीजिए। और उसके बाद हमारा वहाँ पे वुमेन्स पुलिस स्टेशन भी नहीं है लपारादा पे, तो मैं वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो अभी हमारा इस बजट पे जो अनाउंस जो किया गया है, स्पेशली एपी एसएसबी मोस्ट सक्सेसफुल, ये हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोजेक्ट रहा। तो हम भी जब यूथ और स्टूडेंट लीडर पे था, हमेशा हमारा अरुणाचल पे सीधी ग्रेड और पुअर फैमिलीज के लिए बहुत तकलीफ थे। जिसके पास लैंड नहीं है, जिसके पास ऑर्नामेंट्स नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कभी भी नौकरी के सपने नहीं देख सकते थे। लेकिन ये स्कीम, ये बोर्ड जो है एपीएसएसबी का गठन होने के बाद अभी जो है हमारा प्रदेश पे हमारा यूथ का एक जोश है, पढ़ने का एक जोश है और अरुणाचल के लिए कुछ करने का जोश है। तो इसी के लिए भी मैं थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट इस जो लैंड ऑर्नामेंट्स और पैसा जिसके पास नहीं होते थे, ये जो है सबसे तकलीफ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पे होते थे। अभी भी मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, क्योंकि जिसके पास जमीन नहीं है, अभी भी कॉन्टिजेंसी कैजुअल फोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो मैं स्पेशली कॉन्टिजेंसी और कैजुअल को भी मैं हमारा गवर्नमेंट को ये रखना चाहता हूं कि इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सिस्टम में स्पेशली सेक्रेटरीट पे जो है वहाँ पे मैक्सिमम जो है कैजुअल कॉन्टिजेंसी लेके लैंड ऑर्नामेंट्स पैसा लिया जाता है। मैं एक अरुणाचल का एक यूथ होने के नाते मैं इससे भी ध्यान खींचने चाहता हूं, क्योंकि एक दो जो ऑफिसर जो सेक्रेटरीट में हमारा डिस्ट्रिक्ट से रहता है, हम अपील करता है कि इस गवर्नमेंट को आप चाहे तो हमारा वहाँ पे जो सेक्रेटरीट पे है एक दो ऑफिसर का ऊपर एसआईसी भी लगा सकता है, क्योंकि उसके माँ पिताजी के पास जमीन नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अभी रैंपेट जो हमारा जमीन को स्कीम्स देके पैसा देके ले रहा है। तो इसीलिए आई वांट टू अपील एंड रिक्वेस्ट इस गवर्नमेंट को कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पे बहुत स्कीम्स को भी मिसयूज कर रहा है, जैसे कि हमारा प्रीवियस स्पीकर ने जो कहा, जैसे कि हम अभी बाजार में एक मुहिम चला रहा है कि देख रहा है कि पंचायत पे अच्छा लीडर नहीं निकलते हैं। उसका कारण जो है उसका माँ पिताजी के साथ बस्ती में जमीन नहीं होते हैं, मरने के बाद उसको दफनाने के लिए जगह नहीं होते। तो मैं अभी जो है मुहिम एक चलाया है कि हम अपील कर रहा है बस्ती वाला को कि हम स्कीम्स देंगे, आप कम्युनिटी लैंड डोनेट करना है। तो अभी ऑलमोस्ट चार विलेजेस को मैं ग्रेवयार्ड अभी 10,000 स्क्वायर मीटर्स, 7,000 स्क्वायर मीटर्स और 4,000 स्क्वायर मीटर्स ऐसे दे रहा है, लेकिन ले रहा है और उसके बाद स्कीम्स दे रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है आ रही स्कीम्स पे सर, थ्रू यू आई वांट टू कीप लाइट इन दिस सब्जेक्ट कि सर हमारा अपना बस्ती पे सोई विलेज पे ओनली 1,000 स्क्वायर मीटर खरीद के वहाँ का जनता को मिसलीड करके विदाउट माई नॉलेज, विदाउट द नॉलेज ऑफ हेड गम्स, विदाउट द नॉलेज ऑफ पंचायत, सर वहाँ पे हम जो 3 विलेजेस के लिए हम 40 लाख रुपया जो फंड प्रोविजन रखा है, कम से कम उसमें 20,000 स्क्वायर मीटर है, लेकिन ओनली 1,000 स्क्वायर मीटर के लिए 40 लाख प्रोविजन रखा गया है। सर इसे आप इस हाउस के माध्यम से इंक्वायरी करवाने से सही रहेगा। हमारा तरफ से जो आज अरुणाचल बदल रहा है, अरुणाचल इज ट्रांसफॉर्मिंग, इस समय में कभी भी हमारा यहाँ पे स्कीम्स जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद जो हमारा मुख्यमंत्री जो है हमारे स्टेट को इस 4 साल पे
हम तो सोचता है कि आई एम द लकीस्ट एमएलए कि हम एक यंग एंड डिसिसिव चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और एक एक्सपीरियंस डिप्टी चीफ मिनिस्टर का साथ काम करने मिल रहा है। तो जो भी सर आप लोग स्कीम्स देते हैं, आप हमारा डीसीएम सर ने तो इस बार विजिट किए बासार, उन्होंने कहा बासार इज वन ऑफ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए मैं उसी के आधार पे सर हम आप जो भी स्कीम्स देते हैं हमारा तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फेरासूद स्कीम्स जो है सर सही ढंग से वहाँ पे अभी भी हम बोलते हैं कुछ स्कीम्स जो है विदाउट माई नॉलेज आते हैं, लेकिन जो जिन्विन होते हैं मैं उसे कभी मेंबर कंक्लूड कीजिए आपका टाइम। कभी मैं सर ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ। तो सर इसी के साथ तो सर थैंक यू, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट श्री कांगोंग ताकू। I extend the time till 1 o'clock. Honorable Speaker, sir, I represent 40 Mayangeku. Sir, I have gone through the budget 2023-24. It's really a balanced, realistic, and people's budget. सर, ये बजट को लेके I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, and competent team for this excellent and people's-friendly budget. Sir, while appreciating the budget, I would like to say that under the leadership of our Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister, Arunachal, our state is on the path of unprecedented growth and prosperity. As we all know, under the leadership of our Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister, within these 7 years, many remarkable assets have been created in all sectors. The people of Arunachal have been witnessing many remarkable development and developmental activities within these 7 years. Best example, sir, providing route connectivity to the remote areas like Tali constituency. Sir, recently our Honorable Chief Minister has visited Tali circle, Tali constituency. यहाँ से ईटानगर से वहाँ बाय रूट गए, फिर वहाँ से वापस आए, तो that's a historic day. वहाँ का लोग वन गो में अपना जगह में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना लार्ज नंबर गाड़ी देखने को मिला है. That was possible because of our Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister and the tireless efforts of local MLA Chotabhai G.K. Tako. Sir, one और एक रिमार्केबल अचीवमेंट है आपका सर, completion of Siang Bridge, completion of Bailey Bridge over Siang River at Sangam, connecting Nungong Bango. Sir, एक समय sir, Nungong Bango was a landlocked area. There was no route connectivity over there. Sir, आपको याद होगा एक समय नुगोंग बांगो का एक बस्ती, namely Sishan Place. Sishan Place has boycotted the election of 2014 also. 14 election इन लोग ने boycott किया, saying that no route, no vote. But this time, the bridge over Siang River
has been completed. Recently, our Honorable Chief Minister inaugurated that bridge, and now entire Nugong Bango has been given road connectivity, and that very village, Sishan village, has got the road connectivity now. And this was also possible because of our Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, and the local MLA, Ojing Tasing. Sir, now I'm coming to Vijayanagar. Sir, एक समय जो है सर, Vijayanagar circle, entire Vijayanagar circle was left unconnected from the rest of the world. वहाँ में route connectivity नहीं था. अभी हमको सुनने में आया है that route has also been completed, and shortly the route of Vijayanagar will be inaugurated. तो सर personally Vijayanagar route completion को सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि I was the officer over there who carried out the detailed survey works of Mio Vijayanagar route. तो हमने I traversed entire length of Mio Vijayanagar route. I put merged 150 kilometers of Mio Vijayanagar route while carrying out survey works. So it took me 10 nights and 11 days to complete the survey works of that route. तो सर ये भी मैं यहाँ in this August House ये भी सर हम आप सबको बताना चाहूँगा, ये सर्वे करने में सर our present Honorable Chief Minister, who was RW Minister then, and हम लोग का Honorable Minister Mosang sir, local MLA, दोनों हमको entrust किया था सर्वे करने के लिए in the year 2010. अभी सर ये road complete करने के बाद really it's a moment of immense satisfaction and pride for me. So इसके बाद I also take this opportunity to thank the government for increasing honorarium of GVs. Sir, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, जब villages का healthiness जो है GV के ऊपर depend करते हैं. As well know, the institution of GVs in the state is unique and indispensable. They need to be acknowledged and rewarded. इसके बाद सर I would like to thank the government for allocating 143 crores for Panchayati Raj institution. Hopefully this allocation will strengthen the Panchayati Raj institution of our state. इसके बाद सर मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ, मरियांग गेकू में. सर, on behalf of the people of Mariang Geku and my own behalf, I would like to thank the state government for considering the route from Milang to Pekimodi of Upper Siang under Nesit route. Sir, Pekimodi routes, Pekimodi village, it's a small village. ये छोटा गांव है, छोटा बस्ती. But sir, आदि आदमी लोग का सेंटिमेंट ये पेकीमोदी बस्ती से जुड़ा हुआ है. इसलिए सर ये स्कीम टेकअप करने के बाद the people over there are very happy and elated. Sir, there are many path-breaking announcements in this budget encompassing human resource development, environment, social empowerment, and sports, etc. Sir, the leadership provided by our Honorable Chief Minister
and the vision of our Honorable Deputy Chief Minister has ushered new dawn of development in the state. Sir, ये सब कहते हुए I would like to conclude my speech supporting the wonderful budget. Thank you, sir. Thank you. Department of Finance, Planning and Investment on behalf of Sri Chonamen, Honorable Deputy Chief Minister and Minister in Charge, Finance and Planning and Investment, cordially invites you to lunch at the Banquet Hall of Arunachal Pradesh Legislative Assembly. And I now adjourn the House to reassemble again at 2 p.m. They